ओके, सो दो टाइप्स के सरफेस लैंडमार्क्स होते हैं बेसिकली, दे आर विजिबल एंड पाल्पेबल। मींस कुछ हम दूर से ही देख सकते हैं और कुछ हमें छू के देखने पड़ते हैं। सो जस्ट गो विद द region wise first one. Just go with the first region, that is the pectoral one. As we know, this is also called as a chest region. Starting with the first prominent bone in a pectoral region, that is the clavicle. It is the long bone. It is present at the upper segment of the chest wall. Basically, when we are comparing the chest wall, it is just enclosed by the clavicle, then 12 pairs of the ribs. Along with the at the center, we are having the sternum with that. Okay, and along with the sternum, ribs are attached with the costal cartilage. This complete thoracic cage is related with the pectoral region. So the start with the first palpebral structure present in the pectoral region, that is the clavicle. It is just present at the upper segment. Here it is the clavicle. Basically it is visible सरफेस लैंडमार्क। हम इसको दूर से भी देख सकते हैं, जब हमने इसका डिस्क्रिप्शन देखा था। तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एन कॉलर बोन और द ब्यूटी बोन। कॉलर बोन इट इज मोस्टली रिलेटेड विद द मेल एंड ब्यूटी बोन इट इज रिलेटेड विद द फीमेल। तो ये हम विजिबल लैंडमार्क्स में इसको कंसिडर करते हैं। अगेन when we are just considering the cavity of the chest, inside the body, it's just divided by the muscle called as a diaphragm, जो दो इसमें डिवाइड करती है चेस्ट कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को। तो क्लैविकल इट्स लाइज हॉरिजॉन्टली with the root of the neck. This is the neck and this portion is called as a root of the neck, separating the front from the chest. The bone is subcute throughout. ये हमने देखा है जब डिस्क्रिप्शन देखा था कि ये पूरा बोन सबक्यूटेनियस होता है, just lies below the skin. So we can just palpate this bone. Then how it just going to run, it already discussed in detail with the bone, that it is convex, forward and medial to third. Then it forming a two prominent joint which we can palpate in with the continuation of this bone. If we are just going with the medial side of the clavicle, we have a joint that is called as a sternoclavicular joint. As in the mid segment of the body, we having a bone that is the sternum, and out of three parts of the sternum, that is manubrium, body and the xiphoid process, it is attached with the xiphoid manubrium of the sternum and it's forming the sternoclavicular joint. तो हम यहाँ पे इसको palpate करके देख सकते हैं। So this is the sternoclavicular joint. Just side to the sternoclavicular joint, we are having another surface landmark structure that is called as a jugular notch. This portion or this depression is called as a jugular notch. It is also called as an interclavicular or the suprasternal notch. It's just by the region suprasternal, just it is just present above the sternum. So this is suprasternal notch. Then interclavicular means it is present between two clavicle, and jugular notch is just a structure related with the jugular vein and all. So this is also called as a jugular notch. So this is also a palpable as well as the visible landmark present in the pectoral region. Lies between the medial end of the clavicle. Then next one, that is the sternal angle, or it is also called as an angle of Lewis, or it is also called as an manubrosternal joint. Means just below 5 centimeter from the jugular notch, we having a prominent ridge from where we can just count a rib from the second number. First, the clavicle, just below the clavicle, we having a first rib. Then when we are just coming down at the midline of the body from the jugular notch, we are having an elevation that is called as an sternal angle or angle of Lewis. और ये important landmark in a pectoral region है, क्योंकि यहाँ पे second rib attach होती है। जो हम count करना start करते हैं rib का, तो हम second rib से start करते हैं, and we are just counting the rib from counting the rib from the sternal angle, and it's just downward and laterally. Means हम जब count करने जाते हैं, so if this is the structure, this is the sternal notch, okay, and here they having a sternal angle. Then after this structure, we are just it's a downward and the laterally, because यहाँ पे जो नीचे का पोर्शन होता है, यहाँ पे सिर्फ कॉस्टल कार्टिलेज अटैच होते हैं। रिब जो होती है वो लैटरली कॉस्टल कार्टिलेज को अटैच होते जाती है। सो हम इसको पाल्पेट करते हैं। बेसिकली अगर थिन पर्सन रहा तो हम ये रिब भी देख सकते हैं, बट अगर ओबेस पर्सन रहा तो हम इसको पाल्पेट करके देखना पड़ता है। अब बेसिकली ये पेक्टोरल रीजन जो है, ये सरफेस लैंडमार्क में बेसिकली जब हम सर्जरीज विद हार्ट जाते हैं, या कभी हम
हमें हार्ट बीट सुननी पड़ती है, या कुछ वैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जैसे हमने लास्ट टाइम देखा था ऑस्कल्टेशन ट्रायंगल जो बैक में प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पे भी चेस्ट वॉल जो होती है, तो हर एक वॉल कौन से साइड में हमें अच्छे से पल्पेट होती है उसके लिए भी यहाँ पे ये रीजन इंपॉर्टेंट है. So this is the sternal organ, this is the body of the sternum, and here at the center, just below the sternum, we having another important structure that is called as an epigastric fossa. Epigastric fossa, it is related with the gastrum, that is the stomach. जब हमें कभी एसिडिटी की तकलीफ होती है, तो जहाँ पे हमें severe pain होता है, that region is related with epigastric fossa. Again, in the last of this session, we are just revising the part of 9 parts of the abdomen. So that portion related with the upper portion of the gastrum, that is the epigastrium or the epigastric area. तो वहीं पे means xiphoid process के नीचे it is a depression at the infrasternal angle. Means infrasternal angle means they having two angles with the sternum, that is the body of the sternum. Basically with the first one, suprasternal angle, that is related with an manubrium to the body, also called as a sternal angle. And infrasternal angle, it is related with an body with the xiphoid process. So that portion is called as an infrasternal angle. The fossa just lies to the infrasternal angle, and it is overlapped by the xiphoid process. Means this is the last process of the sternum. So this is the picture. Basically, we are just seeing here that is this is sternal notch. This is the clavicle. This is the acromial end. Here it is attached with the acromion process of the scapula. ये भी यहाँ पे पाल्पेट कर सकते हैं. अगर क्लाविकल आपने पाल्पेट किया और लैटरली इसके साथ गए, you can just palpate it with an with the similar continuation में यहाँ पे हमें acromial process palpate कर सकते हैं. उसके बाद अगर उसके नीचे आए तो यहाँ पे जो आपने वैक्सीन लिए होंगे, that is related with the deltoid muscle. अब उसके नीचे भी ऊपर के साइड में भी यहाँ पे हम एक स्ट्रक्चर पाल्पेट कर सकते हैं anteriorly. That structure, heart structure, it's related with an greater tubercle of the humerus. हमने ह्यूमरस में दो ट्यूबरकल देखे थे, that is greater and the lesser, and in between that they having a crest that is called as the basipetal groove or intertubercular sulcus. तो वहां पे भी हम ये greater tubercle हम यहाँ पे palpate कर सकते हैं. Then the next important landmark, that is the mid clavicular line. अब basically जब हम clavicle palpate करते हैं, clavicle देखते हैं, तो imaginary line from the clavicle हम mid clavicular line pass करते हैं, just separating the part of the 9 parts of the abdomen. Again, ये जो पॉइंट होता है, ये दो पॉइंट अगर हमने ज्वाइन किए, दैट इज मिड क्लेविकुलर लाइन एंड मिड इंग्वाइनल लाइन. अभी बेसिकली इंग्वाइनल लाइन कहाँ पे होती है, तो अब प्यूबिक ट्यूबरकल, दैट इज द प्यूबिक सिम्फासिस, अगर हम अम्बिलिकस के थोड़े से नीचे आए, वहां पे हमें एक बोनी स्ट्रक्चर प्रोमिनेंटली मिलेगा, दैट इज द प्यूबिक सिम्फासिस. जस्ट लैटरल टू द प्यूबिक सिम्फासिस वी हैविंग अ ट्यूबरकल. फ्रॉम प्यूबिक ट्यूबरकल टू द एंटीरियर सुपीरियर इलियाक स्पाइन. अब एंटीरियर सुपीरियर इलियाक स्पाइन ये हमने देखी है विद द इलियाक क्रेस्ट एट द एंटीरियर बॉर्डर, जहाँ पे हम बेल्ट वगैरह जो लगाते हैं, यहाँ पे लैटरली हमें ये पाल्पेट होती है. तो दैट पोर्शन ऑफ एंटीरियर सुपीरियर इलियाक स्पाइन टू द प्यूबिक ट्यूबरकल, दैट कंप्लीट स्ट्रक्चर इज related with an inguinal ligament. Basically inguinal ligament, it is related with an inguinal canal also. जब हमने abdomen के muscles देखे थी तब मैंने बताया था, they having two openings with that inguinal canal. That is, one is superficial opening and another is the deep opening. Starting with the deep opening, it is formed by the fascia transversalis. अगर आपको याद होगा तो हमने मसल्स देखी थी एब्डोमेन के, स्टार्टिंग विद द एक्सटर्नल ऑब्लिक, देन internal oblique and transverse abdominis. Just below the transverse abdominis we are having a transverse fascia. So from that fascia transversalis we are having a deep inguinal link, and just above the fascia of the external oblique it is forming the superficial inguinal link. So that portion is called as an inguinal canal, through which they are having the important structure, that is the round ligament of the uterus or the vas deferens, that is related with an male. ये स्ट्रक्चर स्पर्मेटिक कॉर्ड वो वहां से पास होता है, तो ये इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है. तो बेसिकली हम यहाँ से मिड क्लेविकुलर लाइन से मिड इंग्वाइनल लाइन तक एक स्ट्रेट इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं 9 पार्ट्स ऑफ एब्डोमेन ये करने के लिए. तो वो पोर्शन जहाँ पे क्रॉस होता है विद द कॉस्टल कार्टिलेज, इट इज एट द लेवल ऑफ 9 कॉस्टल कार्टिलेज, जहां से हम ट्रांसपैलोरिक लाइन भी आगे ड्रॉ करेंगे फॉर द 9 पार्ट ऑफ एब्डोमेन. दिस मिड क्लेविकुलर लाइन वर्टिकली पास थ्रू द 9th costal tip of the 9 costal cartilage and just dissect in the lower segment, that is the mid inguinal point. Then here again having a two fossa, that is infraclavicular fossa and supraclavicular fossa. अब ये भी हम यहाँ पे पाल्पेट करके देख सकते हैं. यहाँ पे आपको छोटा सा डिप्रेशन मिलेगा जस्ट अबव
the clavicle, this portion which is just above the clavicle, that is the supraclavicular fossa, and exactly just below that we having another depression just below the clavicle. एक छोटा सा यहाँ पे डिप्रेशन आपको मिलेगा lateral side में, जहाँ पे शोल्डर जॉइंट स्टार्ट होता है उसके पीछे, उसके जस्ट साइड में यहाँ पे छोटा सा डिप्रेशन मिलेगा, दैट इज द इंफ्राक्लेविकुलर fossa. It is also called as a deltopectoral angle because here in the chest region we are having a pectoralis major. तो यहाँ तक पेक्टोरलिस मेजर है, अब यहाँ से डेल्टॉइड स्टार्ट हो रही है, तो डेल्टॉइड और पेक्टोरलिस मेजर के बीच में यहाँ पे, ठीक है, दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज एन इंफ्राक्लेविकुलर फोसा. अब बेसिकली यहाँ पे अगर डिसेक्शन हमने प्रॉपरली किया या इसको सेपरेट किया, तो ये दोनों के बीच में एक ग्रू होता है, एक कैविटी होती है, जहां से सिफेलिक वेन, जो वेन पूरे आर्म का, अपर लिंग का जो वेनस ड्रेनेज होता है, इट्स बाय टू स्ट्रक्चर, दैट इज बेसिलिक वेन एंड द सिफेलिक वेन. तो सिफेलिक वेन यहाँ पे सुपरफिशियल होती है, वो हम यहाँ पे पाल्पेट नहीं होती, पर ये दोनों के बीच में होते हैं, जस्ट सेपरेटिंग द फेशिया. हम यहाँ पे देख सकते हैं दैट पोर्शन इज कॉल्ड एज एन डेल्टोपेक्टोरल ग्रूव. ग्रूव मींस दे हैविंग ओनली the gap in between that two muscles, that is the deltoid one and the pectoral one. तो ये जो फोसा होता है, it is also present in between that. This is the deltoid muscle, ये वाली, और ये पेक्टोरल मसल. तो यहाँ पे क्लाविकल के एग्जैक्ट नीचे यहाँ पे छोटा सा आपको डिप्रेशन मिलेगा एट दिस पोर्शन. दिस इज रिलेटेड विथ एन इंफ्राक्लाविकुलर फोसा. देन कोरोकॉइड प्रोसेस, इट इज द tip of the coracoid process. It is just lies 2 to 3 centimeter below the clavicle, overlapped by the anterior fibers of the deltoid. अब ये anterior fibers of the deltoid है, ये clavicle होता है. clavicle को हमने अगर स्ट्रेस किया तो वो जाएगा एक्रोमेन प्रोसेस तक, और उसके ही नीचे अगर हम शोल्डर तक जाएंगे, ये पोर्शन, दिस पोर्शन, दिस इज रिलेटेड विथ अ टिप ऑफ कोराकोइड प्रोसेस. शायद ये फिगर में होगा. This is acromion process. Here they having this portion is related with an infraclavicular fossa. Okay, this is the clavicle. यहाँ पे हम अच्छे से डिप्रेशन देख पा रहे हैं. This is infraclavicular fossa, ठीक है. This is the deltoid one, और ये क्लेविकल के पास जो है that is the acromion process, और उसके posteriorly ये साइड में, पीछे के साइड में आपको एक और palpitation आपको यहाँ पे मिलेगा, that is related with an acromion process. अभी acromion process, it is also the process related with the scapula. Scapula having the three process, that is acromion, coracoid and a spinous process. Spinous process, it is just palpated at the posterior segment. Spinous process at the dorsal surface पे होती है स्कैपुला के, तो हम वहां पे पाल्पेट कर सकते हैं. वो दो हिस्सों में उसको डिवाइड करता है, तो वो पोस्टेरियर बैक रिलेशंस में हम देखेंगे. बाकी दो प्रोसेसेस हम यहाँ पे पाल्पेट कर सकते हैं. देन एक्रोमियल ऑफ द स्कैपुला, ये मैंने पहले ही बोला कि हम कैसे पाल्पेट करेंगे. तो इसको जस्ट, इट इज द पोस्टेरियर एंड और द लैटरल एंड or the lateral border of the acromial angle, and it is just we can just palpate it with the clavicle just at the tip of the shoulder. Then deltoid is the triangular muscle. It is apex directed downward. It forms the rounded counter of the shoulder. तो ये भी बेसिकली विजिबल लैंडमार्क है. जब कभी हम थोड़े से बॉडी वाले पेशेंट्स देखते हैं, तो हम इंजेक्शंस लेने के लिए भी यहाँ पे पाल्पेट करते हैं. तो दिस इज द ट्रायंगुलर मसल विच इज प्रेजेंट इन द शोल्डर रीजन. स्कैपुलर रीजन की मसल है ये, बेसिकली आर्म तक आती है. ह्यूमरस में एट द एंटेरोलैटरल एस्पेक्ट वी हैविंग अ डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी, तो वहां तक वो जाती है. तो ये ट्रायंगुलर मसल होती है, अपेक्स नीचे होता है. तो दिस इज ऑल्सो अ इम्पोर्टेंट लैंडमार्क एज पर द इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस. दिस फर्स्ट वन, दैट इज द डेल्टॉइड वन. And next one, at the posterior segment, we can just palpate this belly. ये जो posteriorly belly है, this belly is related with an trapezius. यहाँ पे भी most of the time हम arm में injections जो लेते हैं, that is related with the trapezius. चार muscles arm में होती है, that 3 in the anterior compartment. That is first one, the bicep brachii. They are having the 2 head. Along with the short head of the bicep brachii, we having the coracobrachialis. Just below the bicep brachii, we having a brachialis, and at the posterior segment, we having a single muscle, that is tricep brachii. तो ये जो मसल होती है बेली पोस्टीरियर सेगमेंट में, that is related with the tricep brachii. तो डेल्टॉइड मसल के नीचे हमें ट्राइसेप मसल मिलेंगी. तो दिस इज द डेल्टॉइड और द ट्रायंगुलर मसल्स with the apex down directing downward. Then next important structure, that is the axilla. Axilla or the armpit, ये जो portion होता है, this portion, it is also counted in a visible landmark in the pectoral region.
that is called as an armpit. It is a pyramidal space between the arm and the chest. अब basically ये arm है, ये portion arm का आता है, ये chest का आता है, तो इन दोनों के बीच में ये cavity present है. तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम जब कभी अपर साइज का कोई डिसीज होता है तो यहाँ पे 5 ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स होते हैं, 4 लिम्फ नोड के ग्रुप होते हैं, वहां पे वो पाल्पेट होते हैं. अगर यहाँ पे कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन रही, मीन्स जस्ट गो विद द लंग कैंसर एंड ऑल, बाकी ट्यूबरकुलोसिस में भी यहाँ पे ये हम पाल्पेट कर सकते हैं. अगर कोई बड़ा डिसीज है जिसमें लिम्फेटिक ड्रेनेज की आवश्यकता होती है तो वो एक्सिला लीजन से हम पाल्पेट कर सकते हैं. ये भी जब हम विजिबल लैंडमार्क में काउंट होते हैं. दिस इज द एक्सिला, दिस इज द एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द एक्सिला एंड दिस वन इज द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द एक्सिला. ठीक है, दिस इज द अपेक्स रिलेटेड विद द एक्सिला, दिस इज द बेस ऑफ द एक्सिला. अब एंटीरियर बॉर्डर ये हम मोस्टली देखते हैं कि दिस इज द एंटीरियर रीजन. यहाँ पे पेक्टोरलिस मेजर थी, तो एंटीरियर बॉर्डर इट जस्ट स्टार्ट विद द पेक्टोरलिस मेजर, पोस्टीरियर विद द दैट लैटिसमस डॉर्सी एंड द सेरेटस एंटीरियर. ठीक है, और यहाँ पे भी 2 या 3 इमेजिनरी लाइन होती है जो हम सरफेस एनाटॉमी में कंसिडर करते हैं विद द एंटीरियर फोल्ड. दिस इज द एंटीरियर एक्सिलरी लाइन, दिस इज मिड एक्सिलरी लाइन एंड दिस इज अ पोस्टीरियर एक्सिलरी लाइन. अब बेसिकली ये भी लाइंस जब हम लीवर की सरफेस एनाटॉमी देखते हैं तो लीवर और स्प्लीन के सरफेस एनाटॉमी में, तो स्प्लीन में जो पोस्टीरियर एंड होता है वो मिड एक्सिलरी लाइन तक जाता है, ऐसा बोला गया है बैक साइड में. और विद द सेम लंग्स है, लंग्स की जो राइट बॉर्डर होती है, जैसे लंग्स बहुत बड़ा ऑर्गन है, इट स्टार्ट्स विद द लेफ्ट साइड टू द राइट साइड. अब बेसिकली जब लंग स्टार्ट होता है तो अपर बॉर्डर जो होती है वो स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट जो ड्रॉ करते हैं, दैट इज 9 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिड स्टर्नल लाइन टू द 5th इंट्राकॉस्टल स्पेस. ठीक है, मींस 5th इंट्राकॉस्टल स्पेस हमें काउंट करनी पड़ती है, फिर 9th सेंटीमीटर फ्रॉम द मिड स्टर्नल लाइन से वहां पे होती है. देन सेकंड लाइन वी आर जस्ट ड्राइंग with that first point to the Ziphis terminal joint, then at the left side 5th intercostal space, and then at the last 6 पॉइंट है वहां पे लास्ट में वो मिड एक्सिलरी लाइन तक काउंट होता है. तो बेसिकली ये ऑर्गन के काउंटेशन के लिए ये इमेजिनरी लाइन हमने कंसीडर की है, दैट इज द एंटीरियर एक्सिलरी लाइन, मिड एक्सिलरी लाइन एंड द पोस्टीरियर एक्सिलरी लाइन. तो यहाँ पे सेम डिस्क्रिप्शन में उन्होंने दिया है कि पोस्टीरियर एक्सिलरी फोल्ड इज फॉर्म बाय द लैटिसमस डॉर्सी एंड द टेरेस मेजर एंड द एंटीरियर एक्सिलरी फोल्ड इज फॉर्म बाय द पेक्टोरलिस मेजर. अब यहाँ पे एक दूसरा पॉइंट ऐसा भी होता है कि अपेक्स में ये जो पोर्शन है एट द अपेक्स दे हैविंग अ कैविटी फॉर द पैसेज ऑफ द सम स्ट्रक्चर्स रिलेटेड विद द नेक ऑफ द रूट ऑफ द नेक. ठीक है, नेक के कुछ स्ट्रक्चर एक्सिला में जो ट्रांसफर होते हैं वहां पे एक छोटी सी ओपनिंग होती है, जस्ट गार्डेड बाय द स्कैपुला एंड द क्लेविकल एट द एंटीरियर एस्पेक्ट, स्कैपुला एट द पोस्टीरियर एस्पेक्ट. तो वहां से रूट ऑफ नेक के कुछ स्ट्रक्चर पास होते हैं, तो उस हिसाब से ये important landmark है, that is the axilla. Next is the back. ये recent में हमने देखा है, most of the back structures are they are just counted with the scapula or the shoulder blade. It is the bone which is present at the posterolateral aspect of the thorax. ठीक है, ये जो chest wall है उसके posterolaterally सबसे पीछे के ओर ऐसे चिपक के scapula होता है. Scapula is extend from the second to 7th रिब. ठीक है, अब यहाँ पे जैसे हमने स्टार्टिंग में यहाँ से काउंट करने की कोशिश की तो हमें एंगल ऑफ लुइस था, स्टर्नल एंगल था, जहां से हम सेकंड रिब काउंट करते थे. पर स्कैपुला में ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है, तो हमें जब रिब यहाँ पे काउंट करनी होती है तो एंटायर स्कैपुला इट्स जस्ट विथ अ सेकंड टू 7th रिब एंड एट द इंफीरियर एंगल ऑफ द स्कैपुला दे आर जस्ट हैविंग 8th रिब. तो हम यहाँ पे 8th रिब से उसको काउंट करना स्टार्ट कर सकते हैं स्कैपुला को कंसीडर करके. एक्रोमियन इट्स लाइज एट द टॉप ऑफ द शोल्डर, द क्रेस्ट ऑफ द स्पाइन of the scapula runs to the acromion medially and slightly downward, and the medial border of the inferior angle of the scapula it's can be palpated. तो यहाँ पे medial angle जो है, अगर हमने दीवार को पुश करके रखा तो हम medial angle भी इसको विजिबल लैंडमार्क में ये बेसिकली आता है. अगर हम जब कभी आप फिजियोथेरेपी को गए होंगे, अगर आपको शोल्डर की कुछ तकलीफ है तो दे आर जस्ट सेइंग दैट वो एक राउंड व्हील होता है जिसको आप घुमाओ. अगर शोल्डर की कुछ ये रहा तो फिजियोथेरेपी में ऐसा होता है. तो ऐसे कंडीशन में आप बैक से मेडियल बॉर्डर इसकी देख सकते हैं कि जो मुंह होती है, तो मेडियल बॉर्डर भी ये पाल्पेब्रल और विजिबल लैंडमार्क में आता है. देन 8th रिब जस्ट बिलो द इंफीरियर एंगल. अब यहाँ पे
और एक स्ट्रक्चर होता है दैट इज द स्पाइन ऑफ द स्कैपुला, वो T4 लेवल से हम काउंट कर सकते हैं कि थोरेसिक वर्टिब्रा की कौन सी लेवल वहां पे आएंगी। देन इलियक क्रेस्ट, ये इलियम की अपर बॉर्डर है, दैट we can just palpate this from the anterior superior iliac spine up to the posterior superior iliac spine। तो वहां पे anterior superior iliac spine जो है वो आराम से palpate कर सकते हैं by the tip of the finger, and just below that anterior superior iliac spine we having that sorry the posterior superior iliac spine at the posterior aspect, जहां पे एक shallow depression आपको median plane के बाजू में 5 सेंटीमीटर में मिलेगा, वहां पे आपको posterior superior iliac spine भी हम palpate कर सकते हैं। So this is about the iliac crest, anterior superior iliac spine. It is visible as well as the palpable joint landmark. But posterior superior iliac spine, it is just a palpable landmark and having the position from the midline of the back to just a 5 centimeter lateral to that. Then sacrum, ये आराम से हम palpate कर सकते हैं, just वो dimple जो है left and right उसके above होता है। Usually 3 sacral spines are palpable at the middle. sacrum हमने देखा है 5 बोन से वो बनता है, तो उसमें भी अपर जो सेगमेंट्स होते हैं 3 सैक्रल ट्यूबरोसिटी या सैक्रल ट्यूबरकल होते हैं जो मीडियन क्रेस्ट पे प्रेजेंट होते हैं। बेसिकली सैक्रम, अगर लास्ट इसमें हमने देखा था सैक्रम में 5 स्ट्रक्चर्स प्रोमिनेंटली होते हैं, तो मिड लाइन में ट्यूबरस होते हैं, देन दे हैविंग द लैमिना, देन हैविंग द फोरामेन, देन हैविंग द ट्रांसवर्स प्रोसेस का ट्यूबरकल। तो ये जो होता है सेंट्रल में 3 ट्यूबरकल हम आराम से पाल्पेट कर सकते हैं। अपर साइड में दे हैविंग द एला विथ अ बॉडी ये फर्स्ट सैक्रल से बनती है जो 5th लंबर के साथ आर्टिकुलेट होते हैं। तो ये प्रोसेस भी हम वहां पे काउंट कर सकते हैं। बेसिकली जब हम कटी बस्ती वगैरह हमने जो सुना है, तो ऐसे कंडीशन में ये चीज काम में आती है। जैसे हमारे पास MRI का रिपोर्ट अगर आपने कभी देखा होगा तो दे आर जस्ट सेइंग कि 4th to 5th में प्रॉब्लम है, वहां पे डिजेनरेशन हुआ है 4th या 5th लंबर वर्टिब्रेज में। तो जब हम कटी बस्ती वगैरह ये कुछ प्लान करते हैं, तो ये स्पाइन हम काउंट करते हैं और वहां पे एक सर्कल करके वहां पे तेल पोर करते हैं। तो ये बेसिकली सभी स्पाइन्स काउंट करने के लिए काम में आते हैं कि कौन सा लैंडमार्क कहाँ पे है। तो सेम थोरेसिक जो है, दे आर 12 वर्टिब्रेज ऑफ द थोरेसिक, वो भी स्पाइन हम कैलकुलेट कर सकते हैं। दे आर जस्ट स्टार्टिंग विद द फर्स्ट, मींस अगर यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है तो हम कहाँ से काउंट करेंगे। तो अगर हम ऑक्सीपिटल बोन के पास हाथ रखेंगे, उसके नीचे आएंगे नेक तक, नेक के बाद जहां पे नेक खत्म होती है, तो वहां पे सबसे प्रोमिनेंटली सबसे पहला हमें एक स्पाइन पाल्पेट होता है। दैट स्पाइन इज रिलेटेड विथ 7 सर्वाइकल वर्टिब्री। ठीक है, ये जो सबसे पहला स्पाइन हमें पाल्पेट हुआ वो 7 सर्वाइकल वर्टिब्री होता है। 7 सर्वाइकल होते हैं, 12 थोरेसिक होते हैं, 5 लंबर होते हैं, 5 सैक्रल होते हैं, 5 और 4 कोक्लिक्स होते हैं। तो आउट ऑफ 5 सैक्रल वी कैन जस्ट पाल्पेट 3। Just above that we are having a 5 lumbar vertebrae, just above that we are having a 12 thoracic, and just above that we are having a 7 cervical। बट सर्वाइकल भी पूरे हम काउंट नहीं कर पाते, 7 काउंट कर पाते हैं। देन जहां पे ऑक्सीपिटल बोन खत्म होता है उसके नीचे आपको एक छोटा सा डिप्रेशन मिलेगा, दैट इज रिलेटेड विथ अटलांटो ऑक्सीपिटल जॉइंट, द एटलस सर्वाइकल वर्टिब्रे जो होता है। तो यहाँ पे हम फर्स्ट का स्पाइन थोड़ा सा कैलकुलेट कर पाते हैं, सॉरी सेकंड का, हाँ फर्स्ट का स्पाइन, सेकंड में ऑर्डेंटाइट प्रोसेस होता है ट्रांसवर्स के अलावा। तो वो जब हम वर्टिब्रल कॉलम देखेंगे तो इसकी भी हम वहां पे देखेंगे। तो यहाँ पे सैक्रम इट्स प्रेजेंट एट द लोवेस्ट सेगमेंट, इट इज अ पाल्पेबल विजिबल जॉइंट, यहाँ पे डायग्राम करके बताई है। C7 हम पाल्पेट कर सकते हैं। स्पाइन जो होता है दैट इज रिलेटेड विथ T4, तो यहाँ से हम काउंट करना स्टार्ट करते हैं, दैट T1 T2 3 4 T7 यहाँ पे जहाँ पे क्लैविकल खत्म हो रहा है दैट इज रिलेटेड विथ 7th रिब। तो 7th रिब ये 7 सर्वाइकल को यहाँ पे अटैच होंगी। देन जस्ट गो विद द बिलो सेगमेंट दैट इज L3 L5। अब यहाँ पे हम डिम्पल होता है यहाँ पे दैट इज रिलेटेड विथ पोस्टीरियर iliac crest, दिस इज द iliac crest, this portion they having L3 and L5, just below that we having a sacrum present over here। अगेन यहाँ पे हम ये देखते हैं, यहाँ पे ये स्पाइनस प्रोसेस है T3 T4 T6 की, स्कैपुला के स्पाइनस प्रोसेस के साथ इसको प्रोजेक्ट करते हैं। दिस इज द मेडियल बॉर्डर ऑफ द स्कैपुला, ये जो दिख रही है, तो ये नीचे तक आती है। देन दिस पोर्शन इज द iliac crest, ये जो पोर्शन है दिस इज द इंटीरियर सुपीरियर iliac spine, दिस इज द iliac crest, एंड यहाँ पे पोस्टीरियर सुपीरियर iliac spine होती है। यहाँ दिस फोल्ड इज कॉल्ड एज एन नेटल क्लेफ्ट, जो 2 ग्लूटियल फोल्ड के बीच में होता है दैट इज द ग्लूटियल नेटल क्लेफ्ट।
बैक रीजन में हम यहाँ पे देख पाएंगे, दिस इज द बल्जिंग फर्स्ट मसल दैट इज द बाइसेप ब्रैका। एट द लोअर सेगमेंट दे हैविंग द ट्राइसेप, दिस इज रिलेटेड विद द डेल्टॉइड। यहाँ पे ट्रायंगुलर मसल हम पाल्पेट देख सकते हैं। अगर कोई जिम जाने वाला कोई पेशेंट रहा, कोई बंदा रहा, तो यहाँ पे ये पाल्पेट होता है, दिखता भी है। ये जो मसल होती है यहाँ पे सबसे सुपरफिशियल मसल ऑफ द बैक दैट इज द ट्रेपेजियस। देन दिस इज अ टेरेस मेजर, ये हम पाल्पेट करके देख सकते हैं। दिस पोर्शन इज द इलियाक क्रेस्ट एंड द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द इलियाक क्रेस्ट। तो यहाँ पे ये पोर्शन ये इलियाक रीजन में आता है। यहाँ पे भी मसल्स हम देख सकते हैं, जो बेली हमें यहाँ पे हाथ में लगती है पोस्टीरियर में। एट द लोअर सेगमेंट हैविंग सिंगल मसल दैट इज द लैटिसमस डॉर्सी। तो ये लैटिसमस डॉर्सी की मसल होती है। यहाँ पे बीच में जो डिप्रेशन होता है, जैसे हम अगर पाल्पेट करते गए, कभी आपने मालिश की होंगी तो आपको ये फील हुआ होगा कि वो जब प्रेस करता है टूवर्ड्स, एक तो वो दोनों लैटरली प्रेस करता है स्पाइनस प्रोसेस के, या स्पाइनस प्रोसेस के बीच में से प्रेस करता है। तो बीच में से जब प्रेस करता है तो वहां पे एक छोटा सा डिप्रेशन होता है बेसिकली। तो ये जो होता है दैट इज कॉल्ड एज एन मेडियन फुरो। और एक ये हमें कॉमनली देखने को मिलता है। तो बेसिकली अगर कोई आदमी फिट है, दे उसको सेंट्रल ओबेसिटी नहीं है, मीन्स पेट उसका बड़ा नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में ये जो फिर होता है ये नॉर्मली सभी जगह पे एक जैसा होता है। अब वर्टिकल कॉलम दो इसमें एंटीरियर और पोस्टीरियर में डिवाइड होता ये होता है, डायरेक्शन देता है। बट अगर किसी के सेंट्रल ओबेसिटी ज्यादा है, उसका पेट अगर बाहर निकला है, तो आप नीचे पीछे के साइड में उसको फील करके देख सकते हो। ऐसे कंडीशन में जो लंबर ये होता है, कर्वेचर होता है, वो थोड़ा सा अंदर जाता है। इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आपकी सेंट्रल ओबेसिटी रही तो हमें बैक पेन की तकलीफ ज्यादा होती है एज कम्पेयर विद द अदर, क्योंकि जो ग्रेविटी होती है बॉडी की, जैसे मैंने किसी लेक्चर में बताया, शायद हिप बोन के लेक्चर में हमने फिगर देखी थी कि अगर हमने दो सेक्शन बॉडी के दो हिस्सों में अगर हमें बांटना है, तो एक सजाटल सेक्शन होता है जिसमें बॉडी दो हिस्सों में डिवाइड होती है, दैट इज राइट एंड लेफ्ट। और कोरोनल सेक्शन अगर हमने लिया तो उसमें बॉडी दो हिस्सों में डिवाइड होते हैं, दैट इज एंटीरियर एंड द पोस्टीरियर। तो ऐसे इसमें अगर हमने कोरोनल सेक्शन लिया तो बॉडी अगर उसके नॉर्मल स्ट्रक्चर में होंगी तो एंटीरियर सुपीरियर स्पाइन एंटीरियर में आता है, पोस्टीरियर सुपीरियर पोस्टीरियर में आता है, अलॉन्ग विद द स्ट्रक्चर दैट इज पटेला। बट अगर सेंट्रल ये ओबेसिटी ज्यादा रहे तो इसका इंक्लिनेशन बॉडी का ये टुवर्ड्स एंटीरियर एस्पेक्ट थोड़ा सा ज्यादा होता है एज कम्पेयर विद द पोस्टीरियर वन। इसलिए बैक का जो स्ट्रक्चर है दैट इज सैक्रम, ये और पेल्विक गर्डल, इसका प्रेशर आगे की ओर ज्यादा रहेगा, इसका झुकाव आगे की ओर मींस एंटीरियरली ज्यादा रहता है। इसलिए वहां पे ये जो मेडियन फेरो है उसका डिप्रेशन आपको मिलेगा। इसलिए सेंट्रल ओबेसिटी में बैक पेन बहुत कॉमन आप आजकल मिलता है। ठीक है, अगर बैक पेन का पेशेंट रहा तो सबसे पहले तो हम यही बोलते हैं कि सेंट्रल ओबेसिटी कम करो। अब इसके भी नंबर ऑफ आसनास है जिसमें हम सेंट्रल ओबेसिटी कम कर सकते हैं, जैसे पश्चिमोत्तानासन वगैरह हो गया, मीन्स से स्टार्टिंग विद भुजंगासन। तो ये वर्टिबल कॉलम में भी इफेक्ट होता है। इसका प्रेशर एंटीरियर में जो एब्डोमिनल वॉल के मसल होते हैं उसमें भी इसका प्रेशर एक्सर्ट होता है, क्योंकि हम जब भुजंगासन करते हैं तो स्टार्टिंग विद द डाउन पोजीशन टू जस्ट गो विद द भुजंगासन। ठीक है, जब हम ऊपर से ऊपर तक जाते हैं तो जब बेंड होता है एंगल में, तो बेंड इट इज रिलेटेड विद द वर्टिबल कॉलम, और नीचे से वो मसल स्ट्रेस होती है, तो दैट मसल्स दे आर द एब्डोमिनल मसल्स। तो इस कारण भी जो फैट होता है बेसिकली, जब एब्डोमेन एनाटोमिकली हम देखते हैं तो एब्डोमेन हैविंग द स्किन, देन दे हैविंग अ टू फेशिया। ठीक है, बाकी जगह पे एक ही फेशिया सुपरफिशियल फेशिया होता है, लेकिन यहाँ पे दो सुपरफिशियल फेशिया दो हिस्सों में डिवाइड होता है। फर्स्ट वन दैट इज द मेम्ब्रेनियस लेयर एंड सेकंड वन दैट इज द फैट लेयर। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा फैट हमें बॉडी में मिलेगा, मीन्स एक तो एब्डोमेन में होता है, देन सेकंड वन दैट इज द थाई रीजन। सबसे ज्यादा अगर फैट कहीं पे डिपॉजिट होगा तो ये दो ही रीजन में सबसे ज्यादा फैट डिपॉजिट होता है। इसलिए अगर हमें फैट कम करने के लिए कुछ आसन करने हैं तो ये दो लेयर दो जगह पे हमें कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है, एक तो एब्डोमेन, दूसरा थाई। तो दिस इज द नेटल क्लिफ्ट जो ग्लूटेल के फोल्ड के बीच में आते हैं, दिस इज नेटल क्लिफ्ट। और यहाँ पे जहाँ पे ग्लूटेल मसल खत्म होती है दैट इज ऑल्सो अ विजिबल लैंडमार्क, दिस इज कॉल्ड एज एन ग्लूटेल फोल्ड। अब यहाँ पे ग्लूटेल रीजन में सबसे प्रोमिनेंट जो मसल होती है दैट इज ग्लूटेल मैक्सिमस। हमने 10 मसल यहाँ पे देखी थी जब ग्लूटेल रीजन के मसल्स हमने देखे थे, स्टार्टिंग विद द ग्लूटेल मैक्सिमस, जब मैक्सिमस के नीचे दैट इज मेडियस, मेडियस के नीचे दैट इज मिनिमस, और मिनिमस के बिलो मीन्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन दे हैविंग another muscle that is piriformis, superior gemella, inferior gemella,
tendon of obturator externus and quadratus femoris. Along with at the lateral end we are having that टेंसर फेशियालिटी. तो ये टोटल 10 मसल हमने ये रीजन में देखी थी. तो यहाँ तक ग्लूटेस मैक्सिमस होती है. तो ये जो लास्ट का पोर्शन है जहां तक ग्लूटेस मैक्सिमस है, दैट इज कॉल्ड एज एन ग्लूटेल फोल्ड. और ग्लूटेल फोल्ड के नीचे यहाँ पे जो रीजन स्टार्ट होता है दैट इज द थाई रीजन. अब यहाँ पे ग्लूटेल फोल्ड के पीछे एग्जैक्टली वहां पे इस्चियल ट्यूबरोसिटी होती है जहाँ पे हम बैठ रहे हैं. दैट पोर्शन इज कॉल्ड एज एन इस्चियल ट्यूबरोसिटी. और बैक के चारों मसल की ओरिजिन इट इज रिलेटेड विथ एन ग्लूटेल ट्यूबरोसिटी, जिसे हम हैमस्ट्रिंग मसल कहते हैं. दैट इज बाइसेप्स फेमोरिस, सेमीटेंडनस, सेमीमेम्ब्रेनस एंड एडक्टर मैग्नस. ठीक है, तो इनके सबके कुछ फाइबर्स दे आर जस्ट स्टार्टेड विथ एन इस्चियल ट्यूबरोसिटी. तो ये भी पोर्शन इंपॉर्टेंट लैंडमार्क में आता है बैक के, दैट इज द ग्लूटियल फोल्ड. देन जस्ट गो विथ कॉकिक्स. ये सैक्रम के नीचे होता है, ये भी हम पाल्पेट कर सकते हैं. देन ये हमने देखा कि स्पाइन ऑफ 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा, ये हम पाल्पेट कर सकते हैं जस्ट बिलो द फर्स्ट स्पाइन जो हम पीछे की ओर पाल्पेट कर पाएंगे. इट इज अ प्रोमिनेंट रेडियली फेट एट द रूट ऑफ द नेक, हायर अप ऑन द बैक ऑफ द नेक टू द सेकंड सर्वाइकल स्पाइन. मींस ऊपर के साइड में बाकी के हम एक भी काउंट नहीं कर पाएंगे, पर हम सेकंड सर्वाइकल स्पाइन काउंट कर सकते हैं जस्ट 5 सेंटीमीटर बिलो द एक्सटर्नल ऑसिपिटल प्रोट्रूबरेंस. ये लास्ट लेक्चर में हमने देखा था. दिस इज द ऑसिपिटल रीजन. और यहाँ पे अगर कंप्लीट ऑसिपिटल में आप पाल्पेट करने जाओगे तो एक प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर आपको ऑसिपिटल रीजन में मिलेगा, दैट इज ऑसिपिटल प्रोट्रूबरेंस. पैराइटल में एक प्रोमिनेंस होता है दैट इज कॉल्ड एज एन वर्टेक्स. हर एक इसमें होता है. जैसे यहाँ पे प्रोमिनेंस जो है ये फोरहेड का, दैट इज द फ्रंटल प्रोमिनेंस. ठीक है, तो ये हेड रीजन में भी हम पाल्पेट करते हैं या विजिबल लैंडमार्क में आता है. दिस इज द वर्टेक्स जो प्रोमिनेंट होता है पैराइटल रीजन में. तो यहाँ पे ऑसिपिटल प्रोट्रूबरेंस होता है. और इसको अगर डीपली पाल्पेट करोगे तो यहाँ पे 2 लाइनिंग आपको मिलेंगी दैट इज रिलेटेड विथ सुपीरियर न्यूट्रल लाइन एंड द इंफीरियर न्यूट्रल लाइन. ये जो सबसे लास्ट में मैंने लिखा है सुपीरियर न्यूट्रल लाइन, तो ये भी हम ऑसिपिटल रीजन में इसको भी पाल्पेट कर सकते हैं. तो एक्सटर्नल ऑसिपिटल प्रोट्रूबरेंस एंड द सुपीरियर न्यूट्रल लाइन, इट इज जस्ट आइडेंटिफिकेशन पॉइंट ऑफ द जंक्शन ऑफ द बैक विद द हेड. ठीक है, तो यह नेक और हेड के साथ यहाँ पे जंक्शन आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं. तो दीज आर रिलेटेड विद द बैक. देन स्कैपुलर रीजन. अब यहाँ पे हमने देखा है कि अब रीजन वाइज जा रहे हैं, इसलिए इसको फिर से हमने लिया था कि पेक्टोरल रीजन हो गया, बैक रीजन हो गया, देन द रीजन रिलेटेड विद द स्कैपुला. तो यहाँ पे हम क्रेस्ट ऑफ स्पाइन और एक्रोमियन प्रोसेस हम इसको लैटरली पाल्पेट कर पाते हैं. देन एट द अपर सेगमेंट वी कैन जस्ट फील दैट द अपर एंड ऑफ द ह्यूमरस, जो हमने ग्रेटर ट्यूबरकल बोला था वो हम यहाँ पे पाल्पेट कर पाते हैं. ग्रेटर ट्यूबरकल ऑफ द ह्यूमरस इज द मोस्ट लैटरल बोरोनिक प्रोमिनेंस ऑफ द शोल्डर. ठीक है, तो ये शोल्डर का टिप है. यहाँ पे आपको प्लेट जैसा थोड़ा सा स्ट्रक्चर लगेगा. वो कंप्लीट प्रोसेस रिलेट करता है स्कैपुला के साथ. और उसके बाजू में नीचे के साइड में अगर आप फिर से पाल्पेट करेंगे दैट इज रिलेटेड विथ अ ग्रेटर ट्यूबरकल ऑफ द ह्यूमरस. देन नेक्स्ट दैट इज द आर्म. ठीक है, आर्म. अभी यहाँ पे this structure is called as an arm in between the shoulder to the elbow to the wrist, that is forearm, and just below the wrist, that is called as an hand. ठीक है, ये कॉमन टर्मिनोलॉजी एनाटॉमिकली यूज होती है. जैसे हम कभी यूज करते हैं, जैसे हाथ बोला गया तो हम कंप्लीटली यूज करते हैं. तो हाथ को ट्रांसलेट किया तो वी आर जस्ट कॉलिंग इज अ हैंड, बट एनाटॉमिकली हैंड इट इज रिलेटेड विद द पोर्शन जस्ट बिलो द wrist. अब हम जब एनाटॉमिकली खड़े होते हैं, ठीक है, तो palms are towards the anterior aspect, we are facing at the anterior aspect. तो ऐसे जब खड़े होते हैं तो below the wrist that is the hand, in between the wrist to elbow that is forearm, and elbow to shoulder that is the arm. ठीक है, अब इसको another the having the synonyms, इसको manus भी बोला जाता है hand को, forearm को that is antebrachium और arm को that is brachium. ठीक है, इसलिए जो मसल्स के नाम दिए हैं वो आर्म रीजन में इसको ब्रैकियम बोला गया है. इसलिए जो मसल्स के नाम है दे आर आल्सो रिलेटेड विथ एन ब्रैका, मींस कोरेकोब्रैकियलिस, बाइसेप ब्रैका, ट्राइसेप ब्रैका, ब्रैकियलिस, वो ब्रैकियम के कारण उसको नाम दिए गए हैं. ठीक है, तो यहाँ पे आर्म में हम बेसिकली क्या क्या देखेंगे, तो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट दैट इज द ह्यूमरस, देन शाफ्ट ऑफ द ह्यूमरस. अगर कोई थिन बंदा है तो उसमें कंप्लीटली ह्यूमरस हम पाल्पेट कर सकते हैं, बट ये सबक्यूट नहीं है, इसलिए इसका बोनी स्ट्रक्चर जैसे हम टिबिया देखते हैं पैर में, हम इसको ऐसे पाल्पेट नहीं कर पाते. मेडियल एंड लैटरल एपिकोंडाइल ये अच्छे से हम पाल्पेट कर पाते हैं. ये जो पोर्शन है नीचे वाला यहाँ का, यहाँ पे ये दोनों कोंडाइल्स हम आराम से पाल्पेट कर पाते हैं. मेडियल जो होता है वो प्रोमिनेंट होता है, इसलिए मेडियली हम इसको अच्छे से पाल्पेट कर पाते हैं. ये जो स्ट्रक्चर है
ठीक है। मेडियली दिस इज द मेडियल एपिकोंडाइल, दिस इज द लैटरल एपिकोंडाइल, ये दोनों हम कोंडाइल यहाँ पे पाल्पेट कर पाते हैं। And in between them we are having another prominence present over here, this is olecranon process, ठीक है। ये जो प्रोसेस है इट इज रिलेटेड विथ एन अल्ना, ठीक है। ये मेडियल और लैटरल एपिकोंडाइल दे आर रिलेटेड विथ एन ह्यूमरस, बट ये जो सेंट्रल में प्रोसेस आएंगे दैट इज रिलेटेड विथ एन अल्ना, ठीक है। तो लैटरल और मेडियल एपिकोंडाइल ये भी प्रोमिनेंट लैंडमार्क्स है। अब इसका भी यूज जो है जो होता है, जैसे ये मिडिल एपिकोंडाइल है, इसके नीचे ये ओलिक्रोन प्रोसेस के बीच में यहाँ पे अगर आप पाल्पेट करके देखोगे तो उसको थोड़ा सा फ्लेक्स करके देखिए, यहाँ पे आपको एक नर्व पाल्पेट होंगी, या इसको सिर्फ फिंगर थोड़ा सा घुमा के देखिए, यहाँ पे आपको एक प्रोमिनेंटली नर्व पाल्पेट होती है, ठीक है। दिस इज रिलेटेड विथ एन अल्नर नर्व, इसलिए जब हमने पहले फर्स्ट टाइम जब देखा था तो मैंने बोला था अगर किसी की कोहनी दीवार को या कहीं लग गई तो हमें एकदम ऐसे करंट जैसा लगता है, दैट इज ड्यू टू द अल्नर नर्व। और ये बहुत बार हुआ होगा किसी ना किसी के साथ, ठीक है। ये अगर लग गया तो यहाँ पे अल्नर नर्व होती है, ठीक है। तो ये मेडियल एपिकोंडाइल के एग्जैक्टली नीचे होता है। और बेसिकली कभी ये जोर से लग गया तो ये थोड़ा सा प्रोट्रूबरेंस इसका बाहर है, इस कारण यहाँ पे फ्रैक्चर भी बहुत कॉमनली होता है। तो दैट इज मेडियल और लैटरल एपिकोंडाइल, मेडियल और लैटरल सुप्रीकोंडाइलर रिज, ठीक है। अभी एपिकोंडाइल हमने देखे, उसके जस्ट अबव हम अगर पाल्पेट करके गए तो वहां पे ये रीज आपको मिलेंगी। दिस पोर्शन इज रिलेटेड विथ द ह्यूमरस, लोअर एंड ऑफ द ह्यूमरस, जहाँ पे ह्यूमरस एंड हुआ, एंड होते वक्त वो दो ट्यूबर एपिकोंडाइल में एंड हुआ, तो जो बॉर्डर्स उसके शाफ्ट के साथ आती है नीचे, दैट रीजन इज कॉल्ड एज एन सुप्राकोंडाइलर रीज। देन डेल्टोइड फॉर्म द राउंडेड कंटेंट ऑफ द शोल्डर, ये अगेन डेल्टोइड का पोर्शन आर्म में ही आता है, सो दे आर जस्ट काउंटिंग इट विद द आर्म। यहाँ पे हम एक एक स्ट्रक्चर देखेंगे। दिस इज अ बाइसेप ब्रैकाई, ठीक है। अब बाइसेप ब्रैकाई ये आगे की ओर होती है, दिस इज द एल्बो जॉइंट, ठीक है। एल्बो जॉइंट पे अगर आप फिंगर रखोगे और इसको फ्लेक्स करके देखिए, ठीक है, फ्लेक्स करो, एक्सटेंड करो, आपको एक टेंडन यहाँ पे प्रोमिनेंटली मिलेंगी, ये फील होती है, बहुत सुपरफिशियली होती है। दैट टेंडन इज रिलेटेड विथ एन टेंडन ऑफ द बाइसेप ब्रैकाई, ठीक है। ये जो पोर्शन है दिस इज कॉल्ड एज एन क्यूबाइडल फोसा। क्यूबाइडल फोसा में चार मेन कंटेंट हमने देखे थे, दैट इज टेंडन ऑफ बाइसेप ब्रैकाई, ब्रैकियल आर्टरी, मेडियल नर्व एंड द रेडियल नर्व, ठीक है। तो उसमें से बाइसेप ब्रैकाई हम यहाँ पे पाल्पेट करके दे सकते हैं। अगर आपने थंब यहाँ पे रखा, जस्ट फ्लेक्स इट एंड एक्सटेंड इट, तो यहाँ पे पाल्पेशन में बाइसेप ब्रैकाई का टेंडन पाल्पेट होता है, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट लैंडमार्क है। अगेन यहाँ पे सुपरफिशियली मीडियन क्यूबाइडल वेन होती है, जहां से हम ब्लड ड्रेन करते हैं। जब कभी हम ब्लड इन्वेस्टिगेशन को जाते हैं तो वहां पे मीडियन क्यूबाइडल वेन होती है जहां से हम ब्लड निकालते हैं। वहां पे ब्रैकियल आर्टरी जो मैंने बोली, जब हम कभी बीपी काउंट करते हैं तो वहां पे जो डायफ्राम होता है स्टेथोस्कोप का, जो राउंडेड पोर्शन होता है, वो हम यहाँ पे रखते हैं क्यूबाइडल फोसा में, तो वो रिलेट करता है ब्रैकियल आर्टरी को, क्योंकि जब हम पंप करते हैं तो ऊपर में प्रेशर क्रिएट होता है, जिस कारण आर्टेरियल सप्लाई ये होता है, डिमिनिश होता है। इसलिए अगर आपने कभी बीपी काउंट करते वक्त उसको फील किया होगा, ठीक है, तो एक पॉइंट पे हमें खुद फील होता है कि ड्रिबलिंग वाइज ब्लड सर्कुलेशन स्टार्ट हुआ, ठीक है। वो लोएस्ट पॉइंट होता है जहां से स्टार्ट होता है, दैट इज रिलेटेड विथ एन सिस्टोलिक पॉइंट। जो ऊपर का बीपी होता है, बीपी जो नॉर्मली हम बोलते हैं कि 120-80 होता है, तो 120 से वो स्टार्ट होता है, देन वो साउंड मिनिमाइज होते जाता है, फिर वो 80 तक बंद हो जाता है, पूरा ही बंद हो जाता है, क्योंकि फ्लो एकदम से कंटिन्यूअस में आ जाता है जैसे प्रेजेंट होता है। तो ये जो पोर्शन है दैट इज कॉल्ड एज एन क्यूबाइडल ट्रायंगल, तो यहाँ पे हम टेंडन पाल्पेट कर सकते हैं। देन अगेन ये एपिकोंडाइल याद रखना, लास्ट में हम मर्म के जब लेक्चर लेंगे तब ये भी काम में आएगा। ये जो मिडिल एपिकोंडाइल है, उस ये जो पोर्शन है दैट इज कॉल्ड एज एन सेंट्रल पोर्शन ऑफ द एल्बो, ठीक है। मिडिल एपिकोंडाइल को हम काउंट करते हैं, यहाँ पे फिंगर रख के एक फिंगर नीचे बाजू में, ठीक है। अब बेसिकली एक मर्म कहा गया है दैट इज कॉल्ड एज एन कुरपर मर्म, ठीक है। आयुर्वेद में एल्बो जॉइंट इट इज रिलेटेड विथ एन कुरपर संधि, ठीक है। तो जो कुरपर मर्म है दैट इज रिलेटेड विथ एन एल्बो जॉइंट। तो हम जब मर्म चिकित्सा करते हैं तो यहाँ पे मिडियल और लैटरल एपिकोंडाइल के पास फिंगर रखते हैं और उसके नीचे एक फिंगर नीचे उसको हम प्रेस करते हैं, तो ये तब भी ये इंपॉर्टेंट लैंडमार्क में हम उसको काउंट करते हैं, दैट इज रिलेटेड विथ हम अब लैटरली जब हम देखते हैं लैटरल व्यू में, तो हमें मेडियल और लैटरल हेड मेडियल और लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप ब्रैका देखते हैं। अब बेसिकली यहाँ पे भी एक नर्व होती है इन बिटवीन द मेडियल एंड द लैटरल हेड ऑफ द बाइसेप ब्रैका, इट इज कॉल्ड एज एन रेडियल नर्व,
ठीक है। ह्यूमरस में बेसिकली 3 नर्व्स इंपॉर्टेंट होती है रिलेशन में। फर्स्ट वन द अल्नर नर्व जो मिडिल एपिकोंडाइल के नीचे है। एट द मिडल वी हैविंग अ रेडियल नर्व जो दो हेड के बीच में होती है ट्राइसेप के, दैट इज द मेडियल एंड द लैटरल हेड। दैट रीजन इज कॉल्ड एज एन रेडियल ग्रूव। और जब हमने ह्यूमरस देखा था, ह्यूमरस हैविंग 2 हेड्स, दैट इज द एनाटॉमिकल हेड, सॉरी 2 नेक, दैट इज एनाटॉमिकल नेक एंड सर्जिकल नेक। और सर्जिकल नेक के एग्जैक्टली पीछे एक्सिलरी नर्व होती है। इसलिए ह्यूमरस अगर हम कभी आउटस्ट्रेचेड हैंड में फ्रैक्चर हुआ, ऐसे कंडीशन में अगर ह्यूमरस का अपर हैंड फ्रैक्चर हुआ तो एक्सिलरी नर्व डैमेज हो सकती है, इस कारण वहां पे इस्चीमिया भी हो सकता है। दैट इज कॉल्ड एज एन इस्चीमिया होता है, नर्व डैमेज होती है। इस्चीमिया होने के कारण जब हमें एक्सिलरी आर्टरी देखते हैं, एक्सिलरी आर्टरी के 2 ब्रांचेस होती है, एंटीरियर सर्कम्फ्लेक्स फ्यूमरल आर्टरी और पोस्टीरियर सर्कम्फ्लेक्स फ्यूमरल आर्टरी। 6 ब्रांचेस होती है एक्सिलरी आर्टरी की। सबसे लास्ट ये 2 ब्रांचेस होती है, एंटीरियर सर्कम्फ्लेक्स फ्यूमरल आर्टरी और पोस्टीरियर सर्कम्फ्लेक्स फ्यूमरल आर्टरी। ये दोनों, अगर ये ह्यूमरस है, ये दोनों एंटीरियर एंटीरियरली जाएंगी, पोस्टीरियर पोस्टीरियरली जाएंगी। ये दोनों सर्जिकल नेक को राउंड करते हैं। इसलिए अगर ह्यूमरस नेक के पास फ्रैक्चर हुआ तो ये दोनों आर्टरीज भी रप्चर हो सकती है। इसलिए ये भी एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर आता है। तो ये सारे स्ट्रक्चर्स हम लैटरली देख सकते हैं। दिस इज द ओलेग्रान फोसा, देन अ लैटरल एपिकोंडाइल, ट्राइसेप एंड अगेन अ राउंडेड मसल्स एट द अपर सेगमेंट, दैट इज द डेल्टॉइड। ठीक है, देन जस्ट गो विद नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये पूरे हमने देखे ब्रैकिलिस, ये हम पाल्पेट कर सकते हैं एट द इनर साइड। ये जो पोर्शन है यहाँ पे इनर साइड में कोरेकोब्रैकिलिस हम पाल्पेट कर सकते हैं। देन बाइसेप ब्रैकाई, सबसे ऊपर ओवरलैपिंग मसल्स होती है पेक्टोरलिस मेजर की, वो हमने पाल्पेट करके देखी। इसकी बेली भी प्रोमिनेंटली देखते हैं, जो जिम में अगर जाते हैं वो अक्सर यूज करते हैं दैट हमने आज बाइसेप किया, हमने आज ट्राइसेप किया, तो ये मसल भी विजिबल सरफेस लैंडमार्क में आते हैं। देन ब्रैकियल आर्टरी, ये मैंने बताया कि क्यूबाइडल फोसा में हम देख पाएंगे। अल्नर नर्व, ये भी मैंने बताया कि मेडियल एपिकोंडाइल के नीचे हम इसको पाल्पेट कर पाएंगे। क्यूबाइडल वेन्स, जो मेडियल क्यूबाइडल वेन मैंने बताई थी, जहां से हम इन्वेस्टिगेशन के लिए ब्लड निकालते हैं, ये भी क्यूबाइडल फोसा में होती है। तो दैट इज ऑल्सो प्रेजेंट सुपरफिशियली। अब अगर कोई थिन पोर्शन रहा तो सॉरी थिन व्यक्ति रहा तो ये इजीली दिखती है। जैसे कभी हम ब्लड डोनेट करने को गए होंगे तो वो यहाँ पे ऊपर टॉर्निकेट बांधते हैं, उसके बाद यहाँ पे पाल्पेट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर कोई थिन व्यक्ति रहा तो ये पाल्पेट करने की जरूरत भी नहीं, वो उभर के आती है ऊपर। तो ये क्यूबाइडल वेन सुपरफिशियल होती है। देन बेसिलिक वेन और सिफेलिक वेन, ये 2 वेन मैंने बताई थी। यहाँ पे ऊपर जो डेल्टोपेक्टोरल ग्रू होता है दैट इज रिलेटेड विद द सिफेलिक वेन। बेसिलिक वेन मेडियल क्यूबाइडल वेन से मेडियल साइड में एक वेन रन होती है, ये भी ब्लूइश कलर में आपको आर्म के वक्त दिखेंगी। दैट इज रिलेटेड विथ medial border of the bicep brachii, that is basilic vein। ये कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसे दिखते हैं। अगेन कुछ पिक्चर मैंने यहाँ पे दिखे थे। दैट इज एंटीरियर एक्सिलरी फोल्ड, दिस इज डेल्टॉइड, दिस इज बाइसेप ब्रैकाई। ये जो पोर्शन है दैट इज मेडियन बैसिपिटल ग्रूव। ठीक है, अब मेडियन बैसिपिटल ग्रूव, ये टर्मिनोलॉजी शायद पहली बार देखी होंगी। बैसिपिटल ग्रूव हमने देखा था, दैट इज रिलेटेड विथ इंटरट्यूबरकुलर सर्कस, जो 2 ट्यूबरकल के बीच में आता है, ग्रेटर ट्यूबरकल और रेसल ट्यूबरकल के बीच में। ठीक है, तो ये जो है मेडियन बेसिपिटल ग्रूव, दिस पोर्शन, अगर आप ये पोर्शन या बाइसेप की बेली को हाथ में उठा के देखोगे, ठीक है, तो यहाँ पे डिप्रेशन जैसा आपको कुछ लगेगा। बेली अगर ऊपर आ गई तो ये 2 जो डिप्रेशन है, दैट इज फर्स्ट वन जो मेडियली है, दैट इज रिलेटेड विथ मेडियल बेसिपिटल ग्रूव, और जो लैटरली है दैट इज रिलेटेड विथ लैटरल बेसिपिटल ग्रूव। ठीक है, तो ये मेडियल बेसिपिटल ग्रूव भी हम देख पाते हैं। उसके नीचे जो है दैट इज ट्राइसेप मसल, यहाँ पे क्यूबाइडल फोसा होता है, उससे रिलेटेड स्ट्रक्चर आएंगे। ये अनदर व्यू है जो हम देख सकते हैं, लॉन्ग हेड, लैटरल हेड, मेडियल हेड, ओलेग्रान फोसा। ठीक है, तो ये सिर्फ व्यूज अलग अलग लिए हैं ताकि ये मसल अच्छे से देख पाए। देन एपिकोंडाइल्स, ये मैंने पाल्पेट करके बता भी दिए। टेंडन ऑफ बाइसेप ब्रैकाई, ये भी मैंने बताया कि एल्बो के इन फ्रंट सिर्फ आपको फ्लेक्स और एक्सटेंड करना है, ये हम पाल्पेट कर पाते हैं। देन हेड ऑफ द रेडियस एंड स्टाइलॉइड प्रोसेस, ये 2 स्ट्रक्चर है। अब हम फोरआर्म की तरफ आए, यहाँ पे नीचे के साइड में हमें 2 स्ट्रक्चर इजीली पाल्पेट होते हैं एट द पोस्टीरियर सेगमेंट। ठीक है, ये अगर हमने लिखा, ये वाला एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, और एक दूसरा स्ट्रक्चर है। तो ये जो लिटिल फिंगर के साइड में है, ठीक है, दैट इज रिलेटेड विथ एन हेड ऑफ द अल्ना
along with the styloid process, ठीक है। ये कंप्लीट जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पे हेड ऑफ अल्ना है, उसके ऊपर styloid प्रोसेस है, जस्ट टूवर्ड्स द थंब जो पाल्पेट होता है स्ट्रक्चर यहाँ पे, ठीक है। इट इज द लोअर एंड और द styloid प्रोसेस ऑफ द रेडियस। तो यहाँ पे नीचे हेड ऑफ द रेडियस जो है, ये हम एल्बो जॉइंट के लैटरली, तो बेसिकली थिक पर्सन में पाल्पेट नहीं होता, नहीं तो ये यहाँ पे भी थिन पर्सन में पाल्पेट हो सकता है। पर styloid प्रोसेस हम दोनों के पाल्पेट कर सकते हैं एट द नेक लोअर सेगमेंट। तो दिस इज शायद इसका भी एक पिक्चर होगा मेरे पास, ठीक है। ये है, इसमें से ऑलमोस्ट सभी स्ट्रक्चर हम पाल्पेट करके देख सकते हैं। दिस इज द कार्पल विच आर फॉर्मिंग द ब्रिज जॉइंट। ये ऐसा रेडियस होता है, यहाँ पे अल्ना होता है, ठीक है। तो ये रेडियस जो है आउटर लेयर, इट इज द styloid प्रोसेस, ये हेड है और ये styloid प्रोसेस है। तो ये है कुछ, ये पूरे स्ट्रक्चर जो मैंने यहाँ पे डायग्राम में दिखाए हैं, ये पूरे स्ट्रक्चर हम पाल्पेट करके देख सकते हैं, ठीक है। अब बेसिकली दिस पोर्शन जो बल्जी पोर्शन है, दिस इज कॉल्ड एज थिनर इमिनेंस, ठीक है। यहाँ पे टोटल हमने 20 मसल्स देखे थे, तो यहाँ पे 3 मसल्स थे, तो दिस इज कॉल्ड एज थिनर इमिनेंस, दिस इज कॉल्ड एज एन हाइपोथिनर इमिनेंस, ठीक है। और हाइपोथिनर इमिनेंस के नीचे जहां जहां पे मैंने सर्कल करके बताया है, वहां वहां पे आपको हर एक स्ट्रक्चर पाल्पेट होगा, ठीक है। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर पाल्पेट होगा, दैट इज द हैमेट, ठीक है, ये कार्पल बोन है। उसके नीचे लेटरली एक स्ट्रक्चर आपको पाल्पेट होगा, दैट इज रिलेटेड विद पीसीफॉर्म बोन, ठीक है, ये भी कार्पल बोन है, ठीक है। अब यहाँ पे टेंडन हम देख सकते हैं, अगर आपने ब्रिस्ट एक फिक्स कर ली तो एकदम मिडल में आपको एक टेंडन मिलेंगी, दैट इज पैल्मरिस लॉन्गस, ठीक है। अगर ब्रिस्ट आपने एकदम प्रोमिनेंटली बंद कर दी तो मिडल में एक टेंडन आपको पाल्पेट होंगी, दैट इज पैल्मरिस लॉन्गस, ठीक है। फिक्स एकदम पक्की ये कीजिए, ब्रिस्ट ये कीजिए, सेंट्रल में आपको टेंडन आराम से एक पाल्पेट होंगी, दैट इज पैल्मरिस लॉन्गस। फिर थंब के साइड में अगर आप गए तो आपको और एक टेंडन पाल्पेट होती है, दैट इज फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस, ठीक है। यहाँ पे टोटल 7 मसल थी, 5 मसल सुपरफिशियल, 3 डीप, तो 5 सुपरफिशियल मसल में पैल्मरिस लॉन्गस, फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस, ठीक है। और आप अल्नर साइड में अगर गए, लिटिल फिंगर के साइड में, तो यहाँ पे भी आपको एक टेंडन पाल्पेट होती है, दैट इज अ फ्लेक्सर कार्पी अल्नरिस। तो 3 टेंडन यहाँ पे प्रोमिनेंटली पाल्पेट होती है। तो 3 में से पैल्मरिस लॉन्गस तो सिर्फ रिस्ट का एक्सटेंशन और फ्लेक्जन कीजिए, आपको वो उभर के आ जाएंगे, ठीक है, दैट इज पैल्मरिस लॉन्गस। और उसके रेडियल साइड में फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस, अल्नर साइड में दैट इज फ्लेक्सर कार्पी अल्नरिस, ठीक है। अब अगर हम पोस्टीरियरली इसको देखेंगे, ठीक है, अभी एंटीरियरली देखा, पोस्टीरियरली अगर हम देखेंगे तो पोस्टीरियरली आराम से यहाँ पे मींस लिटिल फिंगर के साइड में आपको प्रोमिनेंस मिलेगा, दैट इज रिलेटेड विथ अगेन अ styloid प्रोसेस ऑफ द अल्ना। और थंब के साइड में जो मिलेगा, दैट इज अ styloid प्रोसेस ऑफ द रेडियस, ठीक है। अब मेरे इसमें बेसिकली ये अल्ना का ये दिखता है प्रोमिनेंटली, फ्रैक्चर हुआ था मेरे इसमें, वॉल्वोल्वाटम फ्रैक्चर था, इसलिए यहाँ पे प्लेट डाली थी। तो बेसिकली मेरा हैंड जो है वो थोड़ा सा डाइवर्ट हुआ है नॉर्मली, नॉर्मल एनाटॉमी से। हम जब फिंगर, अगर आपने पूरा हाथ स्ट्रेच करके देखा तो हमारे फिंगर्स ये स्ट्रेट होते हैं, लेकिन मेरे थोड़े से यहाँ पे डेविएशन है, इसलिए यहाँ पे मेरा ये प्रोमिनेंटली दिखता है। थोड़ी सी इसकी तकलीफ होती है, इसका हम कुछ नहीं कर सकते, ये लाइफ लॉन्ग ही रहती है बेसिकली। तो ये पूरे स्ट्रक्चर्स हम यहाँ पे पाल्पेट करके देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये डायग्राम में आपको एक और स्ट्रक्चर दिखता है, दैट इज एनाटॉमिकल स्नब बॉक्स। ये शायद आगे भी मैंने कहीं दिया है, दिस इज एनाटॉमिकल स्नब बॉक्स, ठीक है। अब ये जो पोर्शन है, जब हम थंब एक्सटेंड करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर फॉर्म होता है थंब एक्सटेंड करने के बाद। अब बेसिकली ये अगेन पर्सन टू पर्सन वेरी होता है, हर पर्सन में ये अच्छे से नहीं दिखता। ये थंब एक्सटेंड करने के बाद यहाँ पे एक ट्रायंगुलर फोसा फॉर्म होता है, जैसे यहाँ पे एक्सटेंड किया थंब, यहाँ पे एक ट्रायंगुलर फोसा फॉर्म हो गया, दैट इज कॉल्ड एज एन एनाटॉमिकल स्नब बॉक्स। अब ये बेसिकली 3 टेंडन से बनता है। एक जो ऊपर के साइड में है, दैट इज रिलेटेड विथ टेंडन ऑफ एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस। देन जो बिलो की 2 टेंडन है, दैट इज द टेंडन ऑफ एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस एंड अबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस। तो ये टेंडन भी जो पाल्पेट होती है, जैसे मैंने ये थंब एक्सटेंड किया, ठीक है, तो ये जो प्रोमिनेंटली टेंडन दिख रही है, दैट इज अ टेंडन ऑफ एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस। तो ये भी टेंडन हम पाल्पेट करके देख सकते हैं। यहाँ पे अनदर पिक्चर मैंने दिया, ये ऐसा अगर थिन पोर्शन रहा और उसका एक्सटेंड अच्छा सा हुआ तो ये पूरा एनाटॉमिकल स्नब बॉक्स दिखता है यहाँ पे, ठीक है।
ये भी पाल्पेबल। अब ये बेसिकली लीगल यूज में हम इसका यूज देखते हैं, जैसे कोई ड्रग एडिक्ट वगैरह रहा तो ये यहाँ पे रख के, आपने ये मूवीज में वगैरह देखा होगा, तो एनाटोमिकल का स्नग बॉक्स एक्सटेंड करने के बाद यहाँ पे कैविटी होती है, और जो इनहेल करने का काम करते हैं वो यहीं से करते हैं। इसलिए जब पुलिस वगैरह पकड़ते हैं तो सबसे पहले वो हाथ सूंघ के देखते हैं कि ये कुछ ड्रग की स्मेल वगैरह आती है कि नहीं, तो ये एनाटोमिकली वो यूज में आता है। तो जस्ट कोविड कौन सा छूटा होगा तो वो देख लेंगे। हेड ऑफ डालना मैंने बताया, टॉयलेट प्रोसेस ऑफ डालना भी हमने देखा, पीसी फॉर्म भी हमने देखा कि यहाँ पे हुक ऑफ हैमलेट होता है और यहाँ पे नीचे की ओर पीसी फॉर्म होता है, जैसे इस पिक्चर में दिया है ऐसे के ऐसे ये पाल्पेट होंगे। ये स्लाइड में पहले ही आपको सबको शेयर कर चुका हो, शायद सेकंड ही लेक्चर था, तो ये पूरे पिक्चर्स है सभी के पास, ठीक है। तो ये ऐसे के ऐसे यहाँ पे दिखेंगे। देन नेक्स्ट हुक ऑफ हैमलेट भी हमने देखे हैं। Tubercle of the scaphoid bone, ठीक है, just lies a lateral part of the dorsal case of the extended wrist। wrist को हमने extend किया तो scaphoid bone जो होता है उसका भी हम यहाँ पे ये कर सकते हैं, ट्रेपेजियम। ये सभी कार्पल से रिलेटेड है। ओके, ये एक छूट गया था, ये इंपॉर्टेंट है, ब्रैकियोरेडियलिस प्रोमिनेंस, ठीक है। जब हम फोरआर्म देखते हैं, अगर हमने मैं इसको एनाटॉमिकल पोजीशन में रखा, इसको फ्लेक्स किया, फ्लेक्स करने के बाद ये हमने मिडिल एपिकोंडाइल लैटरल एपिकोंडाइल देखे थे, उसके बाजू में यहाँ पे लैटरली एक मसल आपको प्रोमिनेंटली बल्ज की हुई मिलेंगी, ये जो पोर्शन है, ठीक है, ये एपिकोंडाइल, ठीक है। यहाँ पे लैटरली ये जो मसल है या बल्क होता है, दैट मसल इज रिलेटेड विथ एन ब्रैकियोरेडियलिस, ठीक है। ये छूट गई थी, ये क्यूबाइडल पे क्यूबाइडल फोसा जो है उसके लैटरली प्रेजेंट होती है, दैट इज अ ब्रैकियोरेडियलिस। ये प्रोमिनेंट है लैटरल बॉर्डर ऑफ द फोरआर्म पे, सबसे पहली मसल है, एक्सटेंसर कंपार्टमेंट की सबसे बड़ी मसल है। फ्लेक्सर में आपको दिखती है, फ्लेक्सर कंपार्टमेंट में, एक्टर में, बट उसका फंक्शनिंग जो है एक्सटेंशन रिलेटेड है, तो वो ब्रैकियोरेडियलिस प्रोमिनेंटली दिखते हैं। बाकी के टेंडन हमने देखे, फ्लेक्सर कार्पियोरेडियलिस हमने देखा, पैल्मरिस लॉन्गस जो सेंट्रल टेंडन था वो हमने देखा, और ये भी टेंडन हमने देखा है। उसके बाद रेडियल आर्टरी, ये फेल्ट होती है एट द लोअर एंड एंटीरियर एस्पेक्ट में। जब हम पल्स देखते हैं, इट इज रिलेटेड विथ एन रेडियल आर्टरी, ठीक है। जो यहाँ पे पल्स पाल्पेट होंगी, जस्ट थंब के नीचे, रेडियस के ऊपर दो फिंगर रखिए, आपको रेडियल आर्टरी पाल्पेट होंगी होती है। ये भी पाल्पेबल सरफेस लैंडमार्क में आता है, ठीक है। अगर मुझे पल्स किसी के काउंट करनी है, कभी आप नाड़ी वैद्य के पास वगैरह गए तो वो नाड़ी देख के जो देखते हैं, तो इट इज रिलेटेड विथ एन रेडियल आर्टरी, ठीक है। देन मेडियन नर्व, अब ये बीच में जो पैल्मरिस लॉन्गस होते हैं उसके जस्ट साइड में ये होता है लैटरल एज ऑफ टेंडन ऑफ द पैल्मरिस लॉन्गस। पैल्मरिस लॉन्गस के लैटरली ये नर्व होती है। अगेन जो थिन पर्सन है उसमें वो पाल्पेट हम कर सकते हैं। यहाँ पे जो मर्म होता है, दैट इज कॉल्ड एज अ मणिबंध मर्म, तो इसको भी हम जब स्टिमुलाई करते हैं तो इट इज रिलेटेड विथ एन मेडियल नर्व। तो ये मणिबंध मर्म के पास ये जो थंब है उसको जस्ट हम प्रेस करते हैं, इट जस्ट स्टिमुलेट दैट स्ट्रक्चर रिलेटेड विद द मेडियन नर्व, ठीक है। ये जो पोर्शन है, ये एक तो दो तीन वैद्य है, दो तीन अलग अलग प्रकार से इसको स्टिमुलेट करते हैं। कुछ वैद्य लोग यहाँ पे सिर्फ थंब से इसको स्टिमुलाई करते हैं, ठीक है। कुछ वैद्य जो है, ये जो कंप्लीट टू फिंगर्स होते हैं, मीन्स थाई, सॉरी, थंब और मिडल फिंगर, इसको राउंड करते हैं ब्रिज जॉइंट के बीच में, मीन्स ये जो दो एंड है कार्पल और रेडियस के, उसके ऊपर आपको गैप मिलेंगी, तो वो उस तरीके से उसको व्रैप करते हैं और फिर उसको प्रेस करते हैं, ठीक है। तो ऐसे प्रेस करते वक्त आपको थोड़ा सा एक मूवमेंट भी मिलेगा रेडियस की तरफ। तो ये भी एक तरीका है जो ब्रिज जॉइंट या मणिबंध मर्म को स्टिमुलाई करने का। तो इट इज रिलेटेड विद द मेडियन नर्व। एनाटॉमिकल स्नब बॉक्स हमने देखा, रेडियल आर्टरी भी एनाटॉमिकल स्नब बॉक्स में हम पाल्पेट कर सकते हैं, बट इट इज प्रेजेंट एट द फ्लोअर, तो वो बेसिकली बहुत नीचे पे जाएंगी। जिसमें एनाटॉमिकल स्नब बॉक्स बहुत अच्छे से पाल्पेट होता है, वहां पे हम इसको देख सकते हैं, और वो स्कैफोइड और ट्रापेजियस बोन पे आएंगी। तो दीज आर द पिक्चर्स रिलेटेड टू एनाटॉमिकल स्नब बॉक्स। इन ग्लूटेल रीजन, अब ग्लूटेल रीजन के कुछ स्ट्रक्चर्स हम पहले ही देख चुके हैं, दैट इज द इलियाक क्रेस्ट, नीचे के साइड में आती है। एंटीरियर सुपर इलियाक स्पाइन, दैट इज रिलेटेड विथ एंटीरियर एस्पेक्ट। फोल्ड्स ऑफ द ग्रोइंग, ये भी मैंने आपको बताया, जो होता है फोल्ड्स ऑफ द ग्रोइंग, इट इज द ग्रुप which separates and front of the thigh from the anterior abdominal wall, ठीक है।
एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल है, थाई है, जो हमने इंग्वानल कैनाल देखा स्टार्टिंग में, उसी में वो डिवाइड होता है दो सेगमेंट में। अगर आप एब्डोमेन और थाई कंटिन्यूअस में देखोगे तो वहां पे वो फोल्ड आपको मिलेंगी, दैट इज द फोल्ड ऑफ द ग्रोइन। आप बेसिकली जब कभी इंटरनल डिसेक्शन करते हैं, ठीक है, तो दो जो लेयर्स मैंने सुपरफिशियल लेयर बताई फेशिया के लिए बताई स्किन के नीचे, दैट इज फैटी लेयर एंड द सबक्यूटेनियस लेयर। तो फैटी लेयर ऑफ द एब्डोमेन इज जस्ट कंटिन्यूअस विद द फैटी लेयर ऑफ द थाई, ठीक है। बाकी जगह पे ऐसे लेयर कंटिन्यू नहीं दिखती जैसे यहाँ पे दिखती है। इसलिए जब मैंने बताया कि दो रीजन में हमें फैट बहुत ज्यादा मिलेगा, दैट इज रिलेटेड विद द एब्डोमेन एंड दैट इज रिलेटेड विद द थाई, तो ये पूरी लेयर कंटिन्यू होती है, यहाँ पे कोई भी सेपरेशन या कोई भी अटैचमेंट नहीं होती, ये पूरी थाई की लेयर कंटिन्यू में आती है, दैट इज रिलेटेड विद द ग्रोइंग रीजन। देन थाई ओवरलाइज विद द inguinal ligament, ये मैंने बताई, they having a two structure that is related with an inguinal canal, superficial inguinal ring और deep inguinal ring। then pubic tubercle और pubic symphysis, ये deep most important पैक्लाइपर लैंडमार्क में आता है, ग्लूटेल रीजन और एब्डोमिनल रीजन के वक्त भी काम में आता है। बेसिकली जस्ट अम्बिलिकस के नीचे आप जाओगे towards the end we are just filling that bony structure, that structure is called as a pubic symphysis, just lateral to that we having a pubic tubercle। तो ये भी पाल्पेबरल लैंडमार्क में आते हैं। अगर थीन पोर्शन, थीन कोई पेशेंट रहा तो ये विजिबल लैंडमार्क में भी प्यूबिक ट्यूबरकल हमें दिखता है। देन ग्रेटर ट्रोकेंटर इज द फीमर लाइज एंड बेनीथ द बिलो द प्यूबिक बिलो द ट्यूबरकल ऑफ द इलियाक क्रेस्ट, ठीक है। एंटीरियर सुपीरियर इलियाक स्पाइन है, उसके 5 सेंटीमीटर पीछे 2.5 सॉरी 5 नहीं 2.5 सेंटीमीटर बिहाइंड वी हैविंग अ ट्यूबरकल कॉल्ड एज एन इलियाक ट्यूबरकल। उसके 5 सेंटीमीटर नीचे मींस लैटरल साइड में हमें एक बोनी प्रोमिनेंस मिलेगा, मींस ग्लूटेल रीजन में, ठीक है। ग्लूटेल रीजन में सबसे बड़ा प्रोमिनेंस रीजन होता है, दैट इज रिलेटेड विथ इस्चियल ट्यूबरोसिटी, ठीक है। इस्चियल ट्यूबरोसिटी के लैटरली और एक बोनी स्ट्रक्चर आपको मिलेगा, दैट इज रिलेटेड विथ एन दैट ग्रेटर ट्रोकेंटर ऑफ द फीमर, ठीक है। अगर आपको वो पिक्चर याद होगा, पिक्चर ऑफ द ग्लूटेल रीजन के मसल्स का, दैट इज द क्वाड्रेटस फेमोरिस, तो वो ट्रोकेंटर से स्टार्ट होता है और इस्चियम तक रहता है, तो छोटा सा ही पोर्शन होता है। अब ये दोनों स्ट्रक्चर ग्लूटेल रीजन में हम पाल्पेट करते हैं, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये दोनों स्ट्रक्चर के बीच में मींस इस्चियल ट्यूबरोसिटी के बीच में और ग्रेटर ट्रोकेंटर के बीच में एक नर्व पास होती है, दैट इज कॉल्ड एज एन सियाटिक नर्व। इसलिए मैंने जब स्टार्टिंग में हमने लेक्चर लिया था तब मैंने बताया था कि जिनको आदत होती है कि बैक पॉकेट में वॉलेट लेके बैठने की, ठीक है, तो उन्होंने उनमें बहुत समय तक अगर वो अगर वैसे ही बैठे रहे तो उनमें पेन स्टार्ट होता है फ्रॉम द लंबर रीजन टू द एंड ऑफ द लेग, ठीक है। अब लेग यहाँ पे भी 3 हिस्से होते हैं लोअर लिम के, जैसे यहाँ पे हमने देखा था, दैट इज हैंड, फोरआर्म और आर्म। यहाँ पे थाई इट इज रिलेटेड विथ hip joint to the knee joint, that is thigh, knee joint to ankle joint, that is leg, and just below the ankle joint we having a foot, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बैक पॉकेट में बैक साइड में पॉकेट लेके बैठे तो वो साइटिक नर्व को प्रेस करती है, इसलिए साइटिक के वक्त हम पेशेंट को हमेशा बोलते हैं कि आपको आदत है क्या पैकेट पीछे रखने की, क्योंकि साइटिक नर्व वहां पे प्रेस होती है। इस कारण यहाँ पे लंबर रीजन से जो पेन स्टार्ट होता है, इट जस्ट ट्रैवल विद द साइटिक, थाई के पोस्टीरियर सेगमेंट में भी ये पेन आएगा अप टू द लास्ट सेगमेंट, मींस साइटिक नर्व वो 2 हिस्सों में डिवाइड होती है, दैट इज द कॉमन पेरिनियल नर्व और टिबियल नर्व। देन कॉमन पेरिनियल टिबियल नर्व अगेन डिवाइडेड इनटू 2 सेगमेंट, दैट इज द एंटीरियर एंड द पोस्टीरियर। और साइटिक नर्व का डिवीजन 6 अलग अलग जगह पे होता है। बेसिकली थेरोटिकली इन्होंने बोला है कि जस्ट स्टार्ट विद द पोप्लिटेल फोसा वो डिवाइड होती है, पर बहुत सी जगह पे आपको ऐसा मिलता है कि जो पायरिफॉर्मिस है उसके ऊपर भी डिवाइड होती है, उसके नीचे भी डिवाइड होती है। दे हैविंग 6 टाइप्स कि वो कहाँ कहाँ पे डिवाइड हुई। एक साइंटिस्ट था, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, उन्होंने सन 1936 में नंबर ऑफ बॉडीज डिसेक्ट की थी और उन्होंने ये देखा था कि अलग अलग लेवल पे साइटिक नर्व डिवाइड होती है, ठीक है। तो ये डिवीजन भी थोड़े से इसका ये होता है, वो नॉर्मल स्ट्रक्चर है डिवीजन, पर साइटिक नर्व स्टार्टिंग वहीं पे होती है, ठीक है। अभी रिसेंट में मैंने जो बॉडी डिसेक्ट की थी उसका पायरिफॉर्मिस के ऊपर का डिवीजन था और दोनों ब्रांचेस ये दो स्ट्रक्चर के बीच में आते थे, दैट इज ग्रेटर ट्रोकेंटर और लेसर ट्रोकेंटर के बीच में। तो अगर सिंगल साइटिक नर्व प्रेस हो रही है तो उसके सिम्टम्स हमें अलग मिलेंगे, लेकिन दोनों अलग प्रेस हो रहे हैं तो उसके सिम्टम्स भी हमें अलग मिलते हैं। तो ये थोड़ा सा अवॉइड करते हैं हम कि बैक पॉकेट में रखना चाहिए।
मिड इंग्वाइनल पॉइंट, ये भी मैंने बताया कि इंग्वाइनल लिगामेंट जो है दैट स्टार्ट्स विद द एंटेरो सुपीरियर लेग स्पाइन टू द प्यूबिक ट्यूबरकल, और उसके एग्जैक्टली मिड इंग्वाइनल पॉइंट मींस इमेजिनरी पॉइंट जस्ट ऑफ दैट इंग्वाइनल रीजन। देन पटेला, ये लोअर लिम में मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंडमार्क है, विजिबल लैंडमार्क है। अगर हम सोते हैं तो पटेला नी जॉइंट के ऊपर का बोन है। नी जॉइंट जो फॉर्मेशन होता है नी जॉइंट का, इट इज रिलेटेड विथ एन फीमर एंटीरियरली पटेला एंड इंफीरियरली इट इज रिलेटेड विद द टिबिया ओनली। ठीक है, तो यहाँ पे दो जॉइंट होते हैं बेसिकली, नी जॉइंट में दो जॉइंट होते हैं। इट इज tibia to femur, that is the condylar joint, and femur to the tibia, it is sorry, femur to the patella, that is patellofemoral joint, having two joint within a one joint, that is the knee joint. So इसे कॉम्प्लेक्स जॉइंट भी बोला जाता है नी जॉइंट को, क्योंकि वहां पे दो जॉइंट है। तो पटेला सबसे बड़ा पोर्शन है, विजिबल लैंडमार्क है, दैट इज कॉल्ड एज एन नी कैप ऑल्सो। अब ये सिस्मॉइड बोन है विच इज जस्ट फॉर्म विद इन द क्वाड्रासेप, सॉरी हाँ क्वाड्रासेप्स फेमोरिस मसल। क्वाड्रासेप्स मींस चार हेड होने वाली मसल्स, तो दे आर हैविंग फोर मसल, दैट इज वेस्टस लैटरलिस, वेस्टस मेडियालिस, वेस्टस इंटरमीडियालिस, और उसके बीच में इसका और सॉरी और रेक्टस फेमोरिस, इसके चारों के बीच में इसका टेंडन फॉर्म होता है, दैट इज द पटेला। देन पटेला के नीचे आप अगर जाओगे तो वे हैविंग अनदर टिब्रोसिटी, दैट इज द टिबियल टिब्रोसिटी, और वो दोनों के बीच में एक टेंडन होती है, दैट इज कॉल्ड एज एन लिगामेंटम पटेली। इसलिए कभी आप डॉक्टर के पास गए होंगे और उन्होंने रिफ्लेक्स अगर वो पैरालिसिस के वक्त जहाँ पे चेक करते हैं हैमर नी जॉइंट के थोड़ा सा नीचे मारते हैं, तो दैट इज दैट जहाँ पे वो टच करता है दैट पोर्शन इज रिलेटेड विद द लिगामेंटम पटेली। तो ये भी मोस्ट ऑफ द टाइम हम देखते हैं। देन मेडियल और लैटरल एपिकोंडाइल सॉरी कोंडाइल्स, ये पैर में हम पाल्पेट कर सकते हैं टिबिया के साइड में दोनों जगह पे। देन वहां पे एक एडेक्टर ट्यूबरकल होता है, ये मेडियल कोंडाइल के साइड में होता है, वो हम फीमर के साइड में पाल्पेट कर सकते हैं। इसको पाल्पेट करने के लिए नी को थोड़ा सा फ्लेक्स करना पड़ता है। वहां पे शैलो ग्रूव आपको दिखेंगी which appears at the posterior to the mass of the vastalis। तो ये कुछ पिक्चर्स हमें ऐसे दिखते हैं, ये पोस्टेरियर एस्पेक्ट है नी जॉइंट का, इसलिए यहाँ पे पटेला हमें नहीं दिख रहा। तो यहाँ पे ये पूरे स्ट्रक्चर्स हम पाल्पेट कर सकते हैं। यहाँ पे बल्क होता है मसल्स का, उसके बाद यहाँ पे भी बल्क होता है। तो बेसिकली ये पूरे टेंडन्स हम पाल्पेट कर सकते हैं। अगर आप पोस्टेरियरली उसको पाल्पेट करके देखोगे तो दो स्ट्रक्चर्स वहाँ पे हमें लैटरल और मेडियल इसमें अपर सेगमेंट में देखेंगे। मेडियली हैविंग टू muscles prominently, that is semi-tendinous and semi-membranous at the medial aspect and the lateral aspect with the bicep femoris। ठीक है, और inferiorly we having single muscles with the two head, that is the lateral head of gastrocnemius और medial head of the gastrocnemius। ठीक है, तो ये पूरे posterior side में हम palpate करके टेंडन देख सकते हैं। तो this is the structure related with the thigh। यहाँ पे मैंने एडेक्टर ट्यूबरकल देखा है, दिस इज द मेडियल एपिकोंडाइल। ओके, इसको अगर हमें एडेक्टर ट्यूबरकल को पाल्पेट करना है, अब एडेक्टर ट्यूबरकल जो एडेक्टर कंपार्टमेंट की मसल्स है, दैट इज एडेक्टर मैग्नस, एडेक्टर ब्रेविस, एडेक्टर लॉन्गस और ग्रेसिलिस। ठीक है, तो ये तीनों मसल्स यहाँ पे अटैचमेंट देती है। तो ये ट्यूबरकल भी हम यहाँ पे पाल्पेट कर सकते हैं टुवर्ड्स द मेडियल कोंडाइल। तो इसको पाल्पेट करने के लिए ऊपर से और नीचे से प्रेस करना पड़ता है। दिस इज द एडेक्टर ट्यूबरकल। देन ये पटेला है, दिस इज द टेंडन ऑफ क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस। यहाँ पे एंटीरियर ट्यूबरोसिटी होती है टिबिया की, दैट इज द टिबियल ट्यूबरोसिटी, और उसके बीच में टेंडन होती है, दैट इज द लिगामेंटम पटेली। ठीक है, ये जो है पटेलर टेंडन, दैट इज लिगामेंटम पटेली। तो बटक्स राउंड बल्ज, ये भी मैंने बताया था लास्ट स्टार्टिंग के पिक्चर में। विजिबल लैंडमार्क में आता है जब हम बटक्स में इंजेक्शन लेते हैं, तो ये विजिबल लैंडमार्क में आता है। बेसिकली जब हम ग्लूटेल रीजन में इंजेक्शन लेते हैं, इट इज रिलेटेड विद द ग्लूटेस मीडियस नॉट विद द मैक्सिमस। ठीक है, ग्लूटेल फोल्ड भी मैंने दिखाई। इस्चियल ट्यूबरोसिटी, जहाँ पे हम बैठते हैं, दैट इज रिलेटेड विद इस्चियल ट्यूबरोसिटी। ग्रेटर ट्रोकेंटर ऑफ द फीमर, यह भी मैंने बताया कि उसके साइड में है, लैटरली एंड सॉरी एंटीरियर सुपीरियर लेग स्पाइन के 5 सेंटीमीटर लैटरली बिलो में हम इसको पाल्पेट कर सकते हैं। इलियाक क्रेस्ट, ये बैक रीजन में भी हमने देखी, प्रोमिनेंट रीच है जो बैक में हमें प्रेजेंट मिलती है। तो ये अगेन ग्लूटेरल रीजन में सेम स्ट्रक्चर है। ये कुछ स्ट्रक्चर्स मैंने बताया यहाँ पे। दिस इज ये इलियाक क्रेस्ट है, उसके थोड़ी से नीचे लैटरली ग्रेटर ट्रोकेंटर है, दिस इज इस्चियल ट्यूबरोसिटी। ये कॉकिक्स का एंड है, टिप ऑफ द कॉकिक्स। ठीक है, और ये दोनों के बीच में यहाँ से साइटिक नर्व पास होती है। ठीक है,
तो यहाँ पे इसलिए जब बैक पॉकेट में हम ये रखते हैं, बैक में पॉकेट रखते हैं, तो ये यही पे प्रेस होता है। तो दिस इज द इम्पोर्टेंट लैंडमार्क। अभी ये बेसिकली हम पाल्पेट करके देख सकते हैं। देन दिस इज पोस्टीरियर सुपरइलियाक स्पाइन। अब वो S2 लेवल पे होता है, तो ये S2, S1, L5, L3, और ये इलेक्ट क्रेस्ट ऊपर से पास हो गई तो ये L3, L4 तक आती है। तो ये कुछ ऐसे पिक्चर्स हम पाल्पेट करके बॉडी पे देख सकते हैं। देन नेक्स्ट पोस्टीरियर एंड ऑफ द सिलेक्ट स्पाइस, ये मैंने अभी बताया कि S2 तक आती है, लेवल ऑफ S2। सैक्रम, ये हमने बैक साइड में तभी देखा था कि हम इसको कहाँ पे पाल्पेट कर सकते हैं। देन थाई, कॉमन पेरोनियल नर्व, इट कैन बी पाल्पेटेड द पोस्टरल एस्पेक्ट ऑफ द नेक ऑफ द फिब्युला। जैसे मैंने बताया कि साइटिक नर्व के दो डिवीजन हुए, दैट इज द कॉमन पेरोनियल नर्व और टिबियल नर्व। तो पेरोनियल, इट इज अ वर्ड, इट इज रिलेटेड विद द फिब्युला, इसलिए तीन मसल्स हमने देखी थी लेग में, दैट इज पेरोनियस टर्सियस, पेरोनियस लॉन्गस और पेरोनियस ब्रेविस टुवर्ड्स द फिब्युलर एंड। तो वहां पे ये कॉमन पेरोनियल नर्व होती है। लेकिन इसको अगर हमें पाल्पेट करना है तो जहाँ पे नेक ऑफ द फिब्युला है, जहाँ पे मीन्स जस्ट बिलो द नी जॉइंट, हम इसको लैटरली पाल्पेट करके देख सकते हैं। टिबिया मेडियली होता है। देन फिब्युलर कोलैटरल लिगामेंट, ये फिब्युला लिगामेंट है नी जॉइंट की, ये भी हमें लैटरली पाल्पेट करके हम देख सकते हैं। हैमस्ट्रिंग कैन बी सीन एट द पोस्टीरियर एस्पेक्ट, और पाल्पेट भी कर सकते हैं। जो मैंने बोला कि अगर सुपाइन पोजीशन पे हो तो हम पीछे के साइड में चारों टेंडन इसको पाल्पेट करके देख सकते हैं, दैट इज एडेक्टर मैग्नस, सेमीटेंडनस, सेमीमेम्ब्रेनस एंड द बाइसेप फेमोरिस। तो ये भी हम पोस्टीरियरली थाई में ये मसल्स हम पाल्पेट करके देख पाएंगे। पोप्लिटियल आर्टरी कैन बी फील्ड बाय प्रेसिंग इन द पोप्लिटियल रीजन। पोप्लिटियल रीजन मींस ये पोस्टीरियर ऑफ द नी जॉइंट है, दैट इज द पोप्लिटियल रीजन। फीमर के लोअर एंड का पोस्टीरियर सरफेस भी, दैट इज द पोप्लिटियल सरफेस। ठीक है, तो ये पोप्लिटियल फोसा जो था, इट इज डायमंड शेप, नीचे के दो साइड में और ऊपर दो साइड में ये फॉर्म हुआ था। ऊपर दो साइड में मींस medially it is by semi-tendinous, semi-membranous, laterally by the bicep femoris, then medially inferomedially it is by the medial head of gastrocnemius, or inferolaterally it is by the lateral head of gastrocnemius along with the another muscle called as an plantaris। तो ये पूरे मसल्स हम पीछे के साइड में पाल्पेट करके देख सकते हैं। उसके बीच में हमें पोप्लिटियल आर्टरी दिखेंगी, वहां पे अगर आप डीपली प्रेस करोगे बेसिकली तो पोप्लिटियल आर्टरी पाल्पेट होती है। इट इज जस्ट अ कंटिन्यूएशन ऑफ द फ्यूमरल आर्टरी। ठीक है, सिर्फ वो फ्यूमरल आर्टरी आगे की ओर है थाई में, दैट इज रिलेटेड विद द फ्यूमरल ट्रायंगल, और वो वहां से नीचे नीचे तक जाती है थ्रू द एडेक्टर कैनल, एडेक्टर मैग्नस को वो पियर्स करती है, फिर वो पीछे के साइड में जाती है, दैट इज कॉल्ड एज एन पोप्लिटियल आर्टरी। तो इट इज जस्ट रिलेटेड विद एन पोप्लिटियल फोसा। अब यहाँ पे मैंने वो बाउंड्रीज पहले ही बता दी थी, शायद इसकी पिक्चर्स यहाँ पे होंगे। दिस इज फ्यूमरल ट्रायंगल। ये जो ऑब्लिकली प्लेस मसल आपको दिख रही है, दिस इज द सार्टोरियस। ये जो अपर सेगमेंट है, दैट इज रिलेटेड विथ एन इंग्वानल लिगामेंट। ठीक है, और यहाँ पे जो लाइन है, दैट इज रिलेटेड विथ एडेक्टर मैग्नस। ठीक है, फेमोरल ट्रायंगल की जब हमने बाउंड्रीज देखी थी तब ये प्रोमिनेंटली दिखे थे। अब यहाँ पे जो स्ट्रक्चर प्रोमिनेंटली दिखते हैं, दिस इज सार्टोरियस, दिस इज रेक्टस फेमोरिस मसल। ठीक है, अब ये जो है ये अनदर स्ट्रक्चर होता है मसल का ही, दैट इज वेस्टस लैटरलिस, एंड उसी के पीछे यहाँ पे ग्लूटेस मैक्सिमस ऊपर के साइड में आपको दिखेंगे। ये पिक्चर यहाँ पे फेंड करके बताया है कि कौन कौन से स्ट्रक्चर हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट लैंडमार्क है। जब हम कभी आपने एंजियोग्राफी के पेशेंट देखे होंगे, एंजियोग्राफी दो जगह पे हम पर्टिकुलरली कैनुला पास करते हैं, फर्स्ट इन द अपर सेगमेंट दैट इज विद द रेडियल आर्टरी, जो हमने यहाँ पे पल्स पाल्पेट करके देखी थी वहां से, नहीं तो यहाँ से फेमोरल आर्टरी से उसको पास करते हैं। ठीक है, फेमोरल ट्रायंगल में यहाँ पे आपको दिखेगा तीन स्ट्रक्चर मेन है, दैट इज फेमोरल वेन, फेमोरल आर्टरी और फेमोरल नर्व। फेमोरल वेन यहाँ पे काम में आती है जब बॉडी का एम्बल्विंग होता है, जब किसी ने बॉडी डोनेट की तो उसको सेव करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए हम फॉर्मेलिन वहां पे पुश करते हैं। तो पुश करते वक्त यहाँ से कैरोटिड आर्टरी से पुश करते हैं, तो यहाँ पे कैरोटिड ट्रायंगल है, हमने ट्रायंगल ऑफ नेक में देखा था, यहाँ पे कैरोटिड ट्रायंगल, इट इज फॉर्म बाय द posteriorly by the sternocleidomastoid, anterior superiorly by the posterior belly of digastric, और anterior inferiorly with the superior belly of the homohyoid। तो इसके बीच में यहाँ पे हम पाल्पेट करके देख सकते हैं। यहाँ पे अगर आप डिप उसको पाल्पेट करोगे तो यहाँ पे पल्सेशन आपको मिलेगा, दैट इज रिलेटेड द कैरोटिड आर्टरी। तो यहाँ से हम एम्बल्बिंग फ्लूइड पास करते हैं और यहाँ से ड्रेन करते हैं। तो यहाँ पे दोनों स्ट्रक्चर आपको मिलेंगे, फ्यूमरल आर्टरी भी, फ्यूमरल वेन भी। तो एंजियोग्राफी के वक्त भी इसको काम में आती है।
और एम्बाल्बिंग के वक्त भी ये हमें काम में आती है। दिस इज द पिक्चर्स रिलेटेड विद द नेक्स्ट वन। दिस इज ग्लूटेस मैक्सिमस, दिस इज ग्लूटेस मीडियस। ठीक है, ये मैक्सिमस है, कंप्लीट मीडियस को कवर्ड नहीं करती। यहाँ पे मैंने ये सियाटिक नाव की डायग्राम बताई है कि दिस इज सियाटिक नाव प्रेजेंट बिटवीन द ischial tuberosity टू द ग्रेटर ट्रोकेंटर ऑफ द फीमर, और यहाँ पे सेंटरली वो पास होती है, फिर ये दो इसमें डिवाइड होती है। यहाँ पे फिबुला का हेड है, वहाँ पे हम ये नाव पाल्पेट कर सकते हैं, दैट इज कॉमन पेरोनियल नाव। और ये टिबियल नाव है। अब अगेन अगेन ये दो हिस्सों में डिवाइड होते हैं आगे, एंटीरियर टिबियल और पोस्टीरियर टिबियल। तो ये हम पाल्पेट नहीं कर सकते, पर ये नाव हम पाल्पेट कर सकते हैं। जो मैं पीछे के साइड में आप पाल्पेट करने के स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर बोल रहा था, वो ये है। ये हम हाथ लगा के देख सकते हैं पैर को, ये स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर हमें मिलते हैं। लैटरली जो स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर मिलेगा दैट इज द टेंडन ऑफ बाइसेप ब्रैकी। मीडियली जो हमें मिलेगा दैट इज रिलेटेड विद द सेमी मेम्ब्रेनस और सेमी टेंडनियस। ठीक है, और नीचे के साइड में जो है दैट इज लैटरल हेड ऑफ गैस्ट्रोस्टोमियस और मेडियल हेड ऑफ गैस्ट्रोस्टोमियस। ठीक है, तो ये पूरे हम पाल्पेट करके देख सकते हैं। नीचे यहाँ पे ये जो टेंडन मिलता है दैट इज कॉल्ड एज एन टेंडो कैल्केनियस, यहाँ पे एंकल जॉइंट के नीचे, दिस इज द हील ऑफ द एंकल। ठीक है, यहाँ पे जो टेंडन पाल्पेट होंगे दिस इज कॉल्ड एज एन टेंडो कैल्केनियस, और इट इज आल्सो कॉल्ड एज एन अकिलिस टेंडन। ये माइथोलॉजिकल टर्म है। जो अकिलिस जो है ग्रीक वॉरियर था, उसको यहाँ पे मार के उसकी डेथ हुई थी, सो इट इज आल्सो कॉल्ड एज एन अकिलिस टेंडन। अब यहाँ पे अगेन एंकल जॉइंट के लैटरली और मेडियली आपको दो प्रोमिनेंस मिलेंगे, दैट इज रिलेटेड विद medial malleolus and the lateral malleolus. Medial malleolus it is related with the bone tibia, and lateral malleolus it is related with the fibula. तो ये स्ट्रक्चर, ये पूरे स्ट्रक्चर यहाँ पे हम पाल्पेट कर सकते हैं, ये भी स्ट्रक्चर यहाँ पे हम नीचे पाल्पेट कर सकते हैं। देन मेडियल एंड लैटरल कॉन्डाइल्स कैन बी फील्ड। नी को फ्लेक्स करने के बाद हम ये दोनों देख सकते हैं। टिबियल ट्यूबरोसिटी में मैंने बताई, शाइन इज द एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द टिबिया। टिबियल ट्यूबरोसिटी के नीचे आप पाल्पेट करके देखिए, नीचे तक अप टू द मेडियल मैलोलस एक कंटिन्यूअस बोन आपको मिलेगा, दैट इज द एंटीरियर सॉरी मेडियल सरफेस ऑफ द टिबिया, और उसके एंटीरियरली आपको एक बॉर्डर प्रोमिनेंटली मिलेंगी, दैट इज द एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द टिबिया। आप पैर को इसको लगा के देख सकते हो, नी जॉइंट के नीचे मेडियल में नीचे तक जाइए मेडियल मैलोलस को, यहाँ पे एक बोन मिलता है दैट इज द टिबिया। ठीक है, अब ये जस्ट बिलो द स्किन है, इसलिए प्रोमिनेंटली पाल्पेट होता है, दैट इज द medial surface of the tibia along with the anterior border of the tibia, then it's extent of the tibial tuberosity to the anterior margin of the malleolus. ठीक है, then leg में हम medial surface of tibia palpate कर सकते हैं, sorry this is the anterior border of the tibia not medial border. then gastrocnemius, ये पीछे के साइड में जो सबसे prominent मसल है बल्जिंग में आती है, that is gastrocnemius। ये जो पोर्शन है, ये जो बल्ज में आ रही है, यहाँ पे बेसिकली तीन मसल होते हैं, फर्स्ट वन द गैस्ट्रोस्नेमियस, देन सोलियस, और उसके नीचे छोटी सी मसल होती है और उसका टेंडन होता है, दैट इज द प्लैंटेरिस। तो ये जो पूरा बल्ज होता है ये तीन मसल के कारण बनता है, गैस्ट्रोस्नेमियस, सोलियस और अलॉन्ग विद द प्लैंटेरिस। ठीक है, तो यही स्ट्रक्चर वहां पे मिलेंगे। देन मेडियल मैल्यूलस, लैटरल मैल्यूलस, एंकल जॉइंट के पास जो दो प्रोमिनेंस होते हैं that is related with medial malleolus and the lateral malleolus. Medial malleolus is the prominence of the medial side of the ankle. Lateral malleolus it's just below the medial malleolus. अब medial malleolus के नीचे भी आप थंब रखिए, वहां पे आपको पल्सेशन मिलेंगी। ठीक है, इट इज रिलेटेड विद द टिबियल आर्टरी। अब वहां पे टिबियल नर्व भी होती है, इसलिए जब हम गुल्फा मर्म को स्टिमुलेट करते हैं तो मीडियल मैल्यूलस के नीचे हम उसको स्टिमुलेट करते हैं। अब बेसिकली ये मर्म हम बोलते हैं कि घर में ट्राई मत करो, क्योंकि सबसे पेनफुल अगर कोई स्टिमुलेशन होगा तो ये यहाँ पे होता है। ठीक है, ये खुद हम पाल्पेट करके देख पाएंगे। मीडियल मैल्यूलस के नीचे आप थंब रखिए, वहां पे आपको टिबियल आर्टरी भी पाल्पेट होंगी। तो दिस इज मेडियल मैल्यूलस और लैटरल मैल्यूलस। टेंडो कैल्केनियस मैंने अभी बताया कि लास्ट में हमें वो स्ट्रक्चर दैट इज टेंडो कैल्केनियस। दिस वन इज द टेंडो कैल्केनियस, दिस इज लैटरल मैल्यूलस, जस्ट साइड टू दैट वी आर हैविंग द मेडियल मैल्यूलस। देन पेरोनियल टोक्लिया, ये मोस्ट ऑफ द टाइम अब ये पूरे जो है ये बोन्स से रिलेटेड है ये पोर्शन में। दिस इज द टिबिया, दिस इज द कैल्केनियम, दिस इज द कैलस, उसके आगे नेविकुलर बोन है, उसके आगे मेडियल क्यूबोइडल क्यूनिफॉर्म बोन है। ठीक है, 7 टार्सल्स बोन्स होते हैं। तो ये सभी स्ट्रक्चर्स हम पाल्पेट करके फुट में भी देख सकते हैं। हम मैल्यूलस के नीचे आए, कैल्केनियम तो एक ही बोन है पीछे के साइड में हील में, तो वो होता है। कैलस एंकल जॉइंट फॉर्म करता है, तो वो भी हम पाल्पेट करके देख सकते हैं। जस्ट एंटीरियर टू टालिस वी हैविंग अ नेविकुलर बोन,
just anterior to the navicular bone we having a 3 cuneiform bones, that is the medial, middle and the lateral one. तो वो भी हम यहाँ पे palpate करके देख पाएंगे. ये lateral malleolus है. This is portion related with the fifth of metatarsal bone. ये भी हम palpate कर सकते हैं. This is the calcaneum. ये middle malleolus. यहाँ पे नीचे की ओर यहाँ पे हम talus palpate कर पाएंगे. यहाँ पे हम cuneiform palpate कर पाएंगे और उसके नीचे यहाँ पे हम सॉरी नेविकुलर यहाँ पे palpate कर पाएंगे, यहाँ पे cuneiform palpate कर पाएंगे. देन अगेन यहाँ पे टेंडॉन्स हमें मिलेंगे. अगर आपने फुट देखोगे और फुट को थोड़ा सा फ्लेक्स करोगे तो वहां पे जैसे हम अपर साइड में हमने टेंडॉन्स देखी थी वैसे ही टेंडॉन्स हमें नीचे के साइड में, लोअर साइड में मिलती है. और वही टेंडॉन्स जो वहां पे हमने फुट रीजन में देखी थी वही टेंडॉन्स है, दैट इज एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस. इसकी 4 टेंडॉन्स होती है. देन एक्सटेंसर हॉलिसिस लॉन्गस, और ये हॉलिक्स की तरफ मींस थंब की तरफ जाती है, तो वो टेंडॉन भी मोस्टली पाल्पेट होती है. तो ये मैंने डिसेक्शन के इसमें दिखाया था. दिस इज एक्सटेंसर हॉलिसिस लॉन्गस. जस्ट फुट को आप फ्लेक्स कीजिए, प्लांटर फ्लेक्शन कीजिए, तो ये पूरी टेंडॉन्स यहाँ पे जैसे हमने देखी थी, यहाँ चार टेंडॉन जो यहाँ पे भी दिखती है, ये जो दिख रही है, तो ऐसे ही फुट की भी टेंडॉन दिखते हैं. दिस टेंडॉन इज रिलेटेड विद एन एक्सटेंसर डिजिटोरम. ठीक है, तो ये भी टेंडॉन्स जैसे होती है वैसे है. पैर की भी टेंडॉन्स होती है. दिस इज द एक्सटेंसर हॉलिसिस लॉन्गस, दिस इज tibialis anterior और दिस इज एक्सटेंसर हॉलिसिस ब्रेविस. ठीक है, ये छोटी सी जो टेंडॉन है जो हॉलिस की तरफ जा रही है. ठीक है, अब बेसिकली यहाँ पे भी 4 टेंडॉन्स है, दैट इज एक्सटेंसर डिजिटोरम. तो ये चारों टेंडम हम पाल्पेट कर सकते हैं टुवर्ड्स द डॉर्सम ऑफ द फुट. ठीक है, देन नेक्स्ट दैट इज द विजिबल और पाल्पेबल लैंडमार्क्स प्रेजेंट ओवर द हेड रीजन. तो यहाँ पे सबसे पहले तो कान, ये भी लैंडमार्क में आता है. दिस इज द एक्सटर्नल ऑरिकल. ठीक है, दिस इज द लोब्यूल. ये जो पोर्शन है दिस इज लोब्यूल. ये एक्सटर्नल एक्रोस्टिक स्ट्रक्चर है, ऑरिकल है. ठीक है, अब यहाँ पे 3 हिस्से होते हैं ईयर के, दैट इज द इंटरनल ईयर, एक्सटर्नल ईयर एंड द मिडल ईयर. तो एक्सटर्नल ईयर में यहाँ पे एक्सटर्नल एक्रोस्टिक मियाटस होता है जो यहाँ से अंदर होता है और ये विजिबल लैंडमार्क में आता है. ठीक है, तो दिस इज ऑरिकल. देन ये पोर्शन आइस का जो ऑर्बिट है ये भी विजिबल लैंडमार्क में आता है. दिस इज सुपरसिलियरी आर्च, दिस इज इंफीरियर सिलियरी आर्च. ठीक है, जस्ट साइड टू दिस वी हैविंग दिस बोन, दिस इज कॉल्ड एज एन मैक्सिला. ठीक है, मैक्सिला के बाद यहाँ पे जाइगोमैटिक बोन होता है. लास्ट ही लेक्चर में हमने देखा था, इस पिक्चर में ये दिखेगा. दिस इज जाइगोमैटिकस आर्च. ये जो पोर्शन है दिस इज जाइगोमैटिकस आर्च. दिस बोन इज रिलेटेड विद मैक्सिला, ये सेंटर में. ठीक है, देन दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज एन मेंटल प्रोट्यूबरेंस. दिस इज सिम्फाइसिस मेंटी. सिम्फाइसिस मेंटी के नीचे आइए, दिस इज मेंटल प्रोट्यूबरेंस. मेंटल प्रोट्यूबरेंस के बाजू में यहाँ पे 2 ट्यूबरकल आपको मिलेंगे, दैट इज मेंटल ट्यूबरकल. ठीक है, तो ये ड्यूअल चीन की जो बात मैंने लास्ट लेक्चर में की थी, दैट इज रिलेटेड विद द मेंटल ट्यूबरकल. देन जस्ट बिहाइंड द लोब्यूल. ठीक है, लोब्यूल के बिहाइंड आप यहाँ पे पाल्पेट करके देखिए, आपको यहाँ पे एक प्रोमिनेंस मिलेगा, दैट इज द प्रोमिनेंस रिलेटेड विद द मैस्टोइड बोन. ठीक है, दिस इज द पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन. मैस्टोइड बोन के नीचे जहाँ पे मैंडिबल का एंगल है और मैस्टोइड बोन है, इसके पीछे आप यहाँ पे पाल्पेट करके देखिए, यहाँ पे और एक स्ट्रक्चर आपको पाल्पेट होगा, दैट इज रिलेटेड विद द स्टाइलॉइड प्रोसेस. अब बेसिकली जब हम मर्म विज्ञान में यहाँ पे बोला गया है कि विदुर मर्म होता है, तो यहाँ पे दे आर रिलेटेड विथ एन ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व, मींस टेम्पोरल रीजन में जाने वाली और ऑरिकल में जाने वाली. तो ये यहाँ से पास होती है विद इन दिस कैविटी. ठीक है, मैस्टोइड और बेस ऑफ मैंडिबल के बीच में यहाँ पे छोटा सा डिप्रेशन आपको मिलेगा, वहां पे एंटीरियरली वो स्कल के अंदर एंटर कर सकते हैं. तो वहां पे स्टाइलॉइड प्रोसेस है, तो वहां पे टेम्पोरो ऑरिकुलर नर्व होती है. तो ये पूरे स्ट्रक्चर, दिस इज द एंगल ऑफ मैंडिबल. ठीक है, जब हमने मैंडिबल लास्ट लेक्चर में देखा, तो दिस इज द बॉडी ऑफ द मैंडिबल. just below, just go behind the body of the mandible, this is the inferior border of the ramus of the mandible. और ramus के पीछे जहां से वो सेगमेंट ऊपर के तरफ जाएगा, this portion is called as an angle of mandible. ठीक है, तो यहाँ पे टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट होता है, ये भी हम पाल्पेबल जॉइंट इसमें आता है. जैसे अगर आप यहाँ पे हाथ रखोगे और जस्ट प्रेस कीजिए दोनों टीथ को. ठीक है, अगर आप दोनों टीथ को प्रेस करोगे तो यहाँ पे ईयर के एग्जैक्टली आगे ये टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट भी हम पाल्पेट कर ये फील कर सकते हैं. तो दिस इज एंगल ऑफ मैंडिबल और
zygomaticus arch mental protuberance, ठीक है। फ्रंटल इमिनेंस ये मैंने बोला कि दिस इज द फ्रंटल बोन, यहाँ पे जो प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर हमें दिखता है दैट इज द फ्रंटल इमिनेंस, ठीक है। उसके बाद नेक रीजन में शायद वो पिक्चर यहाँ, हाँ यहाँ पे और कुछ चीजें छूटी हैं, हाँ this is also the visible landmark, this is the nose, this is the nasal bone, this is the apex of the nose, ठीक है। यहाँ पे ये lateral walls होती है, that is called as an ala nasal, ठीक है। उसके बाद ये सुपरसिलियरी आर्च ये मैंने बताई थी, हाँ ये वाला स्ट्रक्चर जस्ट बिलो द नोज एंड जस्ट अबव द लिप दे हैविंग अ डिप्रेशन लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड एज एन फिल्ट्रम, ठीक है। अब ये बेसिकली लोअर एनिमल्स में प्रोमिनेंस होता है इसका, जैसे आपने अगर आपके घर में कुत्ता वगैरह होगा तो आप देखेंगे उसके नोज के नीचे एक आपको स्लिट लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा, एक डिप्रेशन दिखेगा, तो ये डिप्रेशन वही है, सिर्फ हमारे इसमें एडाप्टेशन के कारण वो पूरा चला गया, सिर्फ छोटा सा एक डिप्रेशन बचा है दैट इज रिलेटेड विद द फिल्ट्रम। अब बेसिकली जब ये बॉडी फॉर्म होती है तो ये दो हिस्सों में फॉर्म होती है और फिर सेंटर में फ्यूज होती है, ठीक है। तो ये सेंट्रल है जहाँ पे वो फ्यूज हुआ है, इसलिए ये जो अंदर का पोर्शन होता है दैट इज रिलेटेड विद द पैलेट, ये भी दो हिस्सों में डिवाइड होता है। पैलेट फॉर्म होते वक्त दो बोन से फॉर्म होता है, दैट इज द मैक्सिला, पैलेटाइन प्रोसेस ऑफ द मैक्सिला एंड हॉरिजॉन्टल प्लेट ऑफ द पैलेटाइन बोन। तो ये दो हिस्सों में डिवाइड हुआ, फिर सॉरी फॉर्मेट दो अलग अलग हिस्सों में हुआ और फिर फ्यूज्ड हुआ, ठीक है। तो ये जो सेंट्रल है वो उसको भी डिनोट करता है। देन ये तो नेक के रीजन में थे। देन दिस इज द अनदर लैंडमार्क, ये लास्ट लेक्चर में भी हमने देखे थे, दिस इज द चिन और द मेंटम, जस्ट उसके नीचे आइए, यहाँ पे पोस्टीरियरली फील करने की कोशिश कीजिए, एंटीरियरली आपको सबसे पहला प्रोमिनेंस मिलेगा दैट इज रिलेटेड विथ द हाइड बोन। उसके नीचे आइए, वी हैव इन फर्स्ट visible or palpable structure that is related with the thyroid cartilage. ये thyroid cartilage they are related with an larynx. So सबसे पहले thyroid cartilage आएगा, just below the thyroid cartilage another prominence is there, they are having called as an cricoid cartilage, and just below the cricoid cartilage we are having a depression called as an sternal notch, ठीक है। तो ये नेक में यही रीजन्स हम पाल्पेट कर सकते हैं। देन इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर जो विजिबल होता है दैट इज दिस वन, ये जो है जुगुलर नॉच, ठीक है। अब ये लैटरली गई है, तो ये जो मसल है स्टार्टिंग विद द स्टर्नम टू द क्लेविकल और ये ऊपर की तरफ जा रही है, तो दिस मसल इज कॉल्ड एज स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड। ये इस पिक्चर में अच्छे से दिख रही है, ये जो लाइन दिख रही है जो मास्टोइड की तरफ जा रही है विद द क्लेविकल, दिस इज रिलेटेड विद स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड। अगर मैंने ये प्रोमिनेंटली इसको मूव किया तो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर यहाँ पे हमें पाल्पेट होता है, दिस इज स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड। अब ये दो ट्रायंगल को दो हिस्सों में डिवाइड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल ऑफ मैंडिबल भी अच्छे से दिख रहा है, दिस इज एंगल ऑफ मैंडिबल, दिस इज द हाँ ये भी एक स्ट्रक्चर, इसका नाम शायद हमें नहीं पता होगा। ये कंप्लीट ईयर है, ये लोब्यूल है, ये ऑरिकल्स है, ठीक है। इसके आगे एंटीरियरली ओपनिंग के आगे यहाँ पे आपको एक छोटा सा स्ट्रक्चर दिखेगा, ठीक है। इसको ट्रैगस बोला गया है, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर है ये ओपनिंग है ईयर की, ठीक है। ईयर की ओपनिंग के एग्जैक्ट आगे ये जो ट्रायंगुलर पोर्शन है दिस कॉल्ड इज अ ट्रैगस, दिस इज आल्सो विजिबल लैंडमार्क, ठीक है। अब ये बाकी के पोर्शन जो इंटरनली ईयर के वक्त के ये नाम दिए हैं, शायद ईयर पे हमारा लेक्चर होगा या सेंस ऑर्गन पे होगा, तो ये पार्ट के मैं नाम बता दूंगा। बेसिकली जो आउटर लेयर है दैट इज कॉल्ड एज ए हिलिक्स। अब अगर आप कान ध्यान से देखोगे तो दे हैविंग टू राउंडेड स्ट्रक्चर, आउटर वन कॉल्ड एज एन हिलिक्स, इनर राउंडेड स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड एज एन एंटी हिलिक्स, ठीक है। अब यहाँ पे दो फोसा और होती है, अगर आप आपके ईयर देखोगे तो यहाँ पे ऊपर के साइड में मीन्स हेलिक्स के साइड में आपको एक ट्यूबरकल मिलेगा, ठीक है। अब ये आईने में देख सकते हो, नहीं तो सिर्फ एंटी लेटरल बॉर्डर को सिर्फ फील कीजिए, ठीक है। यहाँ पे एक छोटा सा इलेवेशन आपको मिलेगा दैट इज कॉल्ड एज एन डार्विन्स ट्यूबरकल। ये मैंने शायद किस लेक्चर में बताया कि मुझे पता नहीं, डार्विन्स ट्यूबरकल इसको बोलते हैं। जैसे आपने कुत्तों में देखा होगा, कुत्तों के कान ऐसे खड़े होते हैं, ठीक है। एट सम पॉइंट वो ट्रायंगुलर पोर्शन में आते हैं, तो ये सेम ये जो ट्यूबरकल है, डार्विन का सिद्धांत हमने देखा था, एडाप्टेशन बेसिकली डार्विन ने बताया। तो ये ट्यूबरकल जो है वो उसी का अभी भी जो वेस्टिजल हम कुछ स्ट्रक्चर बोलते हैं बॉडी में लोअर एनिमल से हमें मिले हैं, तो ये उसी का स्ट्रक्चर है। अगर आप एंटीहिलस को यहाँ पे पाल्पेट करके देखोगे तो यहाँ पे छोटा सा ट्यूबरकल आपको मिलेगा दैट इज रिलेटेड विद द डार्विन ट्यूबरकल, ठीक है। तो दैट इज हिलिक्स, एंटीहिलिक्स, ट्रैगस, ठीक है। यहाँ पे एंगल ऑफ मैंडिबल ये भी हमने देखा, थायराइड कार्टिलेज और ये क्रिकॉइड कार्टिलेज यहाँ पे पाल्पेट होता है, एंड दिस इज द फिल्ट्रम।
ये वाला जो डिप्रेशन है दैट इज कॉल्ड एज एन फिल्ट्रम। ये भी स्ट्रक्चर हम बोल सकते हैं कि ऑल्सो विजिबल लैंडमार्क्स। दिस इज द माउथ, अपर लिप, लोअर लिप, जहाँ पे वो फ्यूज होता है, दैट पोर्शन इज कॉल्ड एज एन एंगल ऑफ माउथ। ठीक है, ये जो दोनों फ्यूज हो रहे हैं, लिप तो हमें पता है, बट दिस पोर्शन, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज एन एंगल ऑफ माउथ। अब बेसिकली हमने नंबर ऑफ मसल्स यहाँ से रिलेटेड देखी थी, तो यहाँ पे डिप्रेशर एंगल माउथ की जो मसल होती है वो वहां पे होती है। दिस इज रिलेटेड विद द मेंटम, ऑर्बिकुलरिस ऑरिस यहाँ पे होती है, तो उसी से रिलेटेड ये मसल्स है। देन मैस्टोइड प्रोसेस जो मैंने बताई, ये यहाँ पे हम पाल्पेट कर सकते हैं जस्ट बिहाइंड द ईयर लोब्यूल, दिस इज द ईयर लोब्यूल, और यहाँ पे मैस्टोइड प्रोसेस है, दिस इज द बेस ऑफ द मैंडिबल। ये कुछ ऐसा दिखती है, दिस इज बेस ऑफ द मैंडिबल, दिस इज फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्री, देन दिस इज द मैस्टोइड प्रोसेस। अब यहाँ पे स्टाइलॉइड प्रोसेस उन्होंने नहीं दी है, तो यहाँ पे स्टाइलॉइड प्रोसेस भी हमें दिखती थी। देन these are the triangles of the neck, this is sternocleidomastoid, this is trapezius, और यहाँ पे this is anterior belly of digastric, this is posterior belly of digastric, this is the styloid muscle, this is superior belly of homohyoid, and this is inferior belly of homohyoid। ये हमने रिसेंट में ही देखा है। तो these are the all structure related with the triangles, that is the mandible। ये नीचे वाला पोर्शन, दिस इज कॉल्ड एज अ लोअर जॉ और द मैंडिबल, ये भी लैंडमार्क में है, ये भी हम पाल्पेट कर सकते हैं। देन थायराइड कार्टिलेज हमने देखा, फ्रिकाइड कार्टिलेज मैंने बताया कि हम कहाँ पे कर सकते हैं। फ्रिकाइड कार्टिलेज के नीचे यहाँ पे सुप्रास्टर्नल नॉच के आप डीपली पाल्पेट करोगे, उसको प्रेस करोगे तो हम बोल भी नहीं पाते। इट इज रिलेटेड विद द इसोफेगस एंड द ट्रकिया, एंटीरियरली दे हैविंग द ट्रकिया, पोस्टीरियरली दे हैविंग द इसोफेगस। ये वही पे बोला कि ट्रकिया इज कॉमनली पाल्पेटेड इन द सुप्रास्टर्नल नॉच, ये सुप्रास्टर्नल नॉच है, हमने पहले बताई थी। तो यहाँ पे हम इसको पाल्पेट कर सकते हैं। दे हैविंग द टेंडिनियस हेड ऑफ द ओरिजिन ऑफ द राइट ऑफ द राइट एंड लेफ्ट स्टर्नोक्लेडिड मसल। तो यहाँ पे स्टर्नोक्लेडिड मसल भी हम इसको पाल्पेट कर पाएंगे। तो दीज आर द अगेन सम पिक्चर्स रिलेटेड विद द सेम जो मैंने अभी बताया था। फ्रंटोजाइगोमेट्रिक सुचर, दैट इज फ्रंटल एंड जाइगोमेट्रिक बोन। तो यहाँ पे वो सुचर होता है। मार्जिनल ट्यूबरकल इज द शॉर्ट डिस्टेंस बिटवीन द फ्रंटोजाइगोमेट्रिक ट्यूबल, यहाँ पे पीछे की ओर में आपको एक ट्यूबरकल ये दिखेगा। ये मोस्टली पाल्पेट नहीं होते। मैंडिबुलर नॉच, ये भी पाल्पेट नहीं होता। ये जो मैंडिबल रैमस होता है, रैमस का कॉन्डेलर प्रोसेस जो टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट फॉर्म करता है, वो मैंडिबुलर फोसा में होता है ऑफ द टेम्पोरल बोन। तो वो रिप्रेजेंटेड बाय द कॉन्केव लाइन अपवर्ड एक्सपेंडिंग फॉर द कोरोनेट प्रोसेस। ठीक है, लास्ट में ये पोर्शन, हाँ ये पेट्रियन है। बेसिकली इट इज द स्विचेस प्रेजेंट बिटवीन द फ्रंटो टेम्पोरल रीजन। ठीक है, तो ये पूरे स्ट्रक्चर्स हम यहाँ पे पाल्पेट कर पाते हैं। अब ये रेड लाइंस और मॉइस्चरस लाइंस, ये सिर्फ अलाइनमेंट, जब हम कभी एक्सरे वगैरह निकालते हैं तब स्कल हम कैसे नॉर्मली रखने चाहिए उस रीजन से ये रेड लाइन से ये एनाटॉमिकली कुछ काम का नहीं। हाँ ठीक है, दिस इज जुगुलर पॉइंट ज़ाइगोमेटिकस आर्च, ये ज़ाइगोमेटिकस आर्च है। ज़ाइगोमेटिकस आर्च मींस ज़ाइगोमेटिक बोन से फॉर्म होता है, और एक ज़ाइगोमेटिक प्रोसेस ऑफ टेम्पोरल बोन से फॉर्म होता है। दिस इज द टेम्पोरल बोन, इससे एक छोटा सा बोन यहाँ पे निकलता है, ज़ाइगोमेटिक से यहाँ पे एक ब्रांच निकलती है। तो ये कंप्लीट जो प्रोसेस है, इट दिस आर्च इज फॉर्म बाय द टू बोन्स, दैट इज द ज़ाइगोमेटिक प्रोसेस ऑफ द टेम्पोरल बोन एंड ज़ाइगोमेटिक बोन इटसेल्फ। इस पिक्चर में आपको ये मिलेगा। These are related with the triangles. Again, this is the sternocleidomastoid. This is posterior triangle. This is the anterior triangle. ये triangle हमने डीप में देखे, that is submental triangle, then digastric triangle, carotid triangle, muscular triangle, और यहाँ पे दो triangle होते हैं, that is the occipital triangle और supraclavicular triangle। जिसकी बाउंड्रीज वगैरह हम डिटेल में देख चुके हैं। सिर्फ इसका इंपॉर्टेंट जो है, जैसे यहाँ पे हम पाल्पेट करके देखेंगे, जस्ट बिलो द inferior border of the mandible we having a mandibular fossa, that is the mandibular gland। देन यहाँ पे जब हम पाल्पेट करके देखते हैं तो यहाँ पे दो स्ट्रक्चर होते हैं, दैट इज द कैरोटिड आर्टरी अलोंग विद द जुगुलर वेन। ठीक है, तो ये जुगुलर वेन भी हमें काम में आती है जब हम सेंट्रल लाइन डालते हैं तब। देन लेटरल साइड, यही मैंने बताया, ज़ाइगोमेटिक बताया, हेड ऑफ द मैंडिबल देखे हमने, ट्राइगस हमने देखा है, ये ट्राइगस है, इसके एग्जैक्टली आगे हेड ऑफ द मैंडिबल होता है। हेड ऑफ द मैंडिबल मींस मैंडिबल के वक्त हमने ये देखा था कि दे हैविंग टू प्रोसेसेस, that is coronoid process and the condylate process. Condylate process is forming the joint, that is temporomandibular joint. At the superior aspect of the condylate process, it is called as an head of the mandible. उसके नीचे जो होता है, that is called as a neck of the mandible। नहीं तो ये थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकता है कि हमने तो ये वहां पे देखा नहीं था। Angle of mandible, this portion is called angle of mandible। Yes sir, we have crossed 3 o'clock। okay sir, okay, sorry,
एक्चुअली पूरा कंप्लीट ही हो गया, यही था ये पूरा पोर्शन में, हाँ और ये कर चुका हूँ। पिक्चर्स हमारे पास है ही, और ये लास्ट में हमने लिया था। ठीक है ना सर? जी। थैंक यू।